السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انصب قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان۔ اور چونکہ دوبارہ ہم لوگ براہ راست ہوئے ہیں، اس کا ریزن یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں اگر لائٹ آ جائے تو غنیمت ہے۔ تو آج جو ہے وہ جو آٹوبان روڈ ہے وہاں دن بھر سے بجلی کی آنکھ بچوڑی کا سلسلہ جاری ہے اور بجلی موجود نہیں ہے پراپر وے میں، جس کی وجہ سے ذرا یہاں کے رہائشیوں کو بھی پریشانی کا سامنا ہے اور ہمارے نشریات کو بھی۔ لیکن اب الحمدللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو اسٹینڈ بائی جنریٹرز ہوتے ہیں نا، ان کا سہارا لے کے ہم لوگ جو ہے وہ نشریات کو کنٹینیو رکھیں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہے جناب علی نقشبندی صاحب۔ تو بلا تاخیر میں چاہوں گا تلاوت کلام ربانی سے آج کی نشریات کا آغاز کریں۔ جی ہاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ ناظرین کرام، اور ایک مرتبہ پھر جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے مہمانان سے گفتگو کرتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شہر حیدرآباد کی معروف شخصیات موجود ہوتی ہیں، تو ایک مرتبہ پھر میں تعارف کرواؤں ہمارے آج کے مہمانوں کا۔ جی ہاں، ہمارے درمیان آج جو دو مہمان شخصیات موجود ہیں، آپ دونوں کا جو تعلق ہے وہ صحافت سے ہے۔ تو آج کی ہماری جو پہلی مہمان شخصیت ہیں، آپ مرکزی نائب صدر ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکرز کے جناب عرفان آرانی صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ سے؟ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں، آپ بھی صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اور صحافیوں کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آپ مرکزی صدر ہیں سندھ صحافی سنگت سندھ کے جناب ملک طارق محمود عوان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر زبردست ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ جو مہمان تیسرے روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوتے ہیں، آپ انہیں سنتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، جناب حضرت علامہ اسلام قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جناب علی، جناب آئیے ذرا ہم بڑھتے ہیں فراغ حضرت کی جانب اور کلام سنتے ہیں۔ تو کون سنائیں گے ہمیں کلام؟ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب محترم محمد عمیر مزمل قادری صاحب، جو کہ شاگرد۔ سر آپ کا مائک بند ہے میرے خیال میں۔ آج جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے جناب محمد عمیر مزمل قادری صاحب، جو کہ شاگرد ہیں جناب محمد عمر قادری صاحب کے۔ جناب پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر، پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو۔ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار پھر دکھا شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ خدا را روتا ہوا پھرا داغ جگر
नबी सुनाऊं ईमान पे रब रहमत दे दे तू इस्तिकामत ईमान पे रब रहमत दे दे तू इस्तिकामत देता हूँ वास्ता में तुझको तेरे नबी का या मुस्तफ़ा अता हो हो फिर इज़्न हाज़िरी का कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का जनाब मोहतरम मोहम्मद उमैर मुज़म्मिल क़ादिर साहब नबी पाक साहिबुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे जनाब। बिल्कुल जनाब आली, और जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे साथ आज सहाफ़ी शख्सियात मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पे आज की जो गुफ्तगू होगी वो मुल्क पाकिस्तान में सहाफ़त और फिर सहाफ़ियों के मसाइल पर बातचीत होगी, उनके मसाइल के हल पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इरफान साहब से। सर मुझे बताइएगा, एज अ सहाफ़ी माह रमज़ान किस तरह गुजरता है, क्या शेड्यूल होता है, किस तरह से तरतीब बनती है? बतौर सहाफ़ी जैसे आम आदमी का रमज़ान गुजरता है ऐसे ही हमारा भी गुजरता है, और ज़्यादातर कोशिश होती है कि घर वालों के इशूज़, इफ्तारी, सहरी, ये मसाइल भी हल हों और आवाम के मसाइल को भी हम उजागर करें कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ही मुनाफाखोर भी मार्केट में आपको दस्तयाब होते हैं। बिल्कुल। तो उनकी निशानदही करना भी एक ज़रूरी अमल है। और 20 रमज़ान तक तो सहाफ़ी ज़्यादातर पुरसकून ही होते हैं अगर कोई बड़ा वाक़या ना हो तो। उसके बाद ईद की गहमा गहमी, बाज़ारों की गहमा गहमी और ये सारी चीज़ें फोकस करनी होती हैं। तमाम सहाफ़ी पूरे मुल्क से रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बाज़ार भी। हैदराबाद की ख़ास बात यह है कि हैदराबाद की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है चूड़ी की इंडस्ट्री, और तमाम तर नज़रें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन की वो हैदराबाद की चूड़ी इंडस्ट्री पर होती हैं। तो वो भी रिपोर्ट होती हैं, उसमें मज़दूरों के मसाइल को भी हाईलाइट किया जाता है। और रमज़ानुल मुबारक में जो हमारे मुखय्यर हज़रात हैं उनका जो फोकस होता है उससे भी कोशिश करते हैं कि उनके उस काम को उजागर करें, हौसला अफजाई करें, ताकि ये कि एक हौसला अफजाई से ज़्यादा लोगों की मदद के लिए लोग आगे आते हैं। तो ये ओवरऑल 30 रोज़ों तक यही सिलसिला चलता है। जनाब आली, मलिक साहब लेने पाऊँगा, मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि हमारे जो सहाफ़ी हज़रात होते हैं उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वक्त के बढ़ने के साथ उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो आपने जो सिंध सहाफ़ी संगत सिंध बनाई है, ये किस लिए बनी, ये क्या काम करती, तरह इसको बताइएगा। देखें, सहाफ़त एक मुश्किल पेशा है और सच लिखना और सच छापना और सच दिखाना दिलेर और बहादुर लोगों का काम है। तो हम तो समझते हैं कि जो बहादुर है, दिलेर है, वही सहाफ़ी बन सकता है। डरपोक इंसान कभी सहाफ़ी नहीं बन सकता। तो इस सच लिखने की पैदाइश में आपको पता है, आपके इल्म में होगा कि सिंध में काफ़ी सहाफ़ी शहीद हुए। आज भी उनके केस क्राइम ब्रांच के सब्द खाने में पड़े हुए हैं, लेकिन उनके लवाकिन को इंसाफ नहीं मिला। तो ये जो तंजीमें हैं ये सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए काम करती हैं, और सिंध सहाफ़ी संगत का भी यही मंशूर है कि जो सहाफ़ी सच लिखें, जो सहाफ़ी अवाम के बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाफ़ियों का एक मजबूत और मुनज़्ज़म प्लेटफार्म होना चाहिए, जो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी अपने मुफाद के सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए मैदान अमल में हो। तो सिंध सहाफ़ी संगत का बुनियादी मंशूर तो ये। ठीक हो गया जी। सर मैं आपसे जानना पाऊंगा, जो आपका है पाकिस्तान फेडरल ऑफ जर्नलिस्ट यूनियन वर्कर्स, ये क्या काम करता है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। सहाफ़ियों के जो बुनियादी मसाइल हैं, सहाफ़ती इदारों की बंदिश, सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ, ये ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अरसा दराज से चली आ रही हैं।
उसकी वजह ये कि जो भी हाकिम आता है उसकी कोशिश होती है कि आवाज़ वो सुनाई दे जो वो सुनना चाहता है। ऐसे में जो आवाज़ है वो सहाफ़ी की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती है, और जितनी भी हमारी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स हैं उनका एक मरकज़ी किरदार रहा है कहीं ना कहीं मुख्तलिफ़ अदवार में आवाम की आवाज़ बने हैं और आइन की आवाज़ बने, जिसकी बुनियाद पर ये तंजीमें बनती गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें PFUJ की इतने सारे फोरम क्यों बन गए हैं। तकरीबन 6 फोरम इस वक्त PFUJ के मुख्तलिफ टुकड़ों में काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि जब एक फोरम पर पूरी बरादरी का एतमाद होता है तो वो जिसके पास लीड होती है, जो उसको लीड कर रहा होता है, जब उसके पांव लड़खड़ाने लगते हैं तो फिर दूसरा फोरम बनता है। तो ये वजह है कि यूनिटी हमें नज़र नहीं आती है, उसके पीछे फिर मुफादात का टकराव आ जाता है, और मुफादात के टकराव में मरकज़ी सतह पर ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हुक्मरान कोशिश करते हैं कि उनको अपने हाथ में रखें, मालिकान की अपनी कोशिश होती है कि वो हाथ में रखें, और इसमें सफ़र जो है वो सहाफ़ी करता है। और जब से सहाफ़त दुनिया में शुरू हुई है तब से लेकर आज तक सहाफ़ी ही सफ़र कर रहा है, चाहे वो उसके घर वालों को लाश उठानी पड़े, चाहे उसका इलाज करवाना पड़े, चाहे किसी भी किस्म के माली मसाइल का वो शिकार हो, फोरम्स कभी उसकी मदद को नहीं आते हैं। आवाज़ बुलंद होती है, वक्ती आवाज़ बुलंद होती है, आइन में तरमीम होती हैं, चीज़ें आगे पीछे होती हैं, पर मजबूत आवाज़ आज तक यूनिटी की शक्ल में नहीं बन सकी। कोशिशें बहुत हुई हैं मगर यूनिटी नहीं हुई। ज़ाहिर मुफादात का टकराव है, और इसे जब सहाफ़ी फेस करता है तो उसकी ज़ुबान बंद होती है, और ज़ुबान बंद होती है तो फिर आवाम की ज़ुबान बंद होती है, क्योंकि जब आवाम की नुमाइंदगी करने वाले खामोश हो जाएंगे तो फिर उनके मसाइल को हल करने वाले अपनी मर्ज़ी का काम करेंगे। बिल्कुल ऐसी ज़बाबंदी है तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बा मेरी। जनाब मलिक साहब, आपसे जानना चाहूँगा ये बात कि हम देखते हैं पाकिस्तान में TV चैनल्स, खासतौर पे न्यूज़ चैनल्स का खुलना ऐसा हो गया जैसे अब ना हमारे पास पहले स्कूल सेंटर ये खुला करते थे ना, मतलब हर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं चैनल खुल गया और फिर खबर आती है कुछ दिन बाद वो बंद हो गया। तो ये जो चैनल्स की आंख मचोली है कि खुला फिर बंद हो गया, इसमें जो सहाफ़ी अब जिसकी भर्ती हो गई है वो तो इस उम्मीद से चला गया अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के कि भाई यहाँ अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छे मामलात होंगे, मेरा एक लॉन्ग टर्म काम चलेगा, लेकिन हम देखते हैं 6 महीने बाद, साल बाद सुनने में आता है चैनल बंद हो रहा है। क्यों? माली मुश्किलात है। तो ये जो तय दर पे चैनल का खुलना है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब ये ठीक है हमारे मुल्क में, या कोई सुनवाई हो नहीं, इसको कोई देखने वाला नहीं है इसको? रियासत का चौथा सतून सहाफत है, लेकिन बदकिस्मती से जब से हमारा मुल्क मर्ज़ वजूद में आया है तब से लेकर आज तक सहाफत को हकीकी आज़ादी नहीं मिली है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने अपने मंजूर नज़र चैनल्स पे या मंजूर नज़र सहाफ़ियों पे हाथ रखा है और अपने मुफाद हासिल किए हैं। जब तक हमारे मुल्क में अदलिया आज़ाद नहीं होगी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी और सहाफ़त को हकीकी मानों में आज़ादी नहीं मिलेगी, तो आम इंसान इंसाफ के लिए भटकता रहेगा। वो फिर अदालतों के चक्कर काटे या प्रेस क्लबों के बाहर भूख हड़तालें करे, मुजाहरे करे, रोडों पे एहतजाज करे। सही हो गया जी। अच्छा, हम ये भी देखते हैं इरफान साहब कि जो हमारे यहाँ पे सहाफ़ी होते हैं, क्योंकि एक सहाफ़ी की जो नौकरी है मेरे ख्याल में वो इंतहाई मुश्किल है। मुझे किसी से मेरी बात जिसने कहा था कि भाई सहाफ़ी वो है कि जब धमाका होता है ना तो लोग दूर भागते हैं और सहाफ़ी धमाके की खबर भागता है। तो मतलब इस तरीके से उसकी जो ड्यूटी है बहुत सख्त होती है, बहुत काम कर रहा होता है, लेकिन जो तनख्वाहों का जब अमल शुरू होता है तो तनख्वाहों में रुकावट, उसके तनख्वाहें इतनी कम होती हैं, या इवन कुछ चैनल तनख्वाहें देते ही नहीं है ना, जो इंटर्नशिप के मामला हो जाते हैं शुरू, तो वो जो है उसमें सहाफ़ी किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारेगा? असल में देखें, जहाँ तक आपने धमाकों का जिक्र किया, मैं बहुत सारे ऐसे मराहिल से गुजरा हूँ, और लास्ट जो मेरे सामने जिस इवेंट को मैंने कवर किया वो लाल शहबाज कलंदर के दरगाह का ब्लास्ट था। तो सहाफ़ी को अपनी जो ज़िंदगी है उसका खुद ख्याल करना होता है, और कुछ इथिक्स होती हैं जिसके तहत इवेंट्स को कवर किया जाता है। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अगर ख़ुद को सहाफ़ी कहलाने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि अब तमाम वो हदें जो नहीं क्रॉस करनी वो हम क्रॉस कर जाएंगे, हम सहाफ़ी हैं। ऐसा नहीं है।
एथिक्स हैं, रूल्स हैं, उनको एक तरीके से आपको इवेंट को कवर करना है। जाहिर है वहाँ सिक्योरिटी के इदारे भी होते हैं, दीगर फलाही इदारे भी हंगामी सूरत हाल में काम कर रहे होते हैं, तो किसी की भी आप काम में रुकावट नहीं बन सकते। आपको किस तरह कवर करना है ये सारी चीज़ें इंसान सीखता है। जहाँ तक तनख्वाहों की बात है, तो आपने जब जिक्र किया ना कि इदारे खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, डिपेंड ये करता है, मैं बतौर सहाफ़ी अगर किसी इदारे को ज्वाइन करता हूँ तो मैं सबसे पहले उसके जो ओनर हैं, जो कंपनी है, जो कंपनी उस इदारे को खड़ा कर रही है, उसकी वेल्थ को देखता हूँ कि उसके पीछे कितना वज़न है। ऑफ़र्स तो लातादाद आती हैं, हमें खुल रहे होते हैं, ऑफ़र जारी होती हैं, ज़ाहिर है कुछ दोस्त वहाँ जा रहे होते हैं, कुछ वहाँ जा रहे होते हैं। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं कि वो कुएं में छलांग भी लगा देते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। तो रोशनी होने का ये मतलब नहीं है कि उस रोशनी के पीछे अंधेरा नहीं होगा। तो सहाफ़ियों के साथ तो मसला यही है कि तनख्वाहें रुक जाएं तो जो यूनियंस हैं वो गायब हो जाती हैं, कहीं हमें नज़र नहीं आती। इसमें जो सबसे अफसोसनाक पहलू जो गुज़िश्ता 5 साल में हमने देखा कि 5 साल में इमरान खान की हुकूमत के आगाज़ से मीडिया पर एक ऐसा सवाल आया कि चैनल्स से लोग निकले, हज़ारों की तादाद में निकाले गए वर्कर्स, मगर हमें उसके पीछे कोई एक यूनियन नज़र नहीं आई। ये जो आपने कहा ना कि वर्कर्स क्या कर रही है, तो वर्कर्स का वजूद फिर वजूद में आया कि जब बाकी फोरम्स खामोश हो गए और ये हम देखने लगे कि कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है, तो फिर ये वजूद में आया। और जो परवेज शौकत साहब मरहूम फौत हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन लोगों के लिए खड़े हुए कि ये हमारे 3-4 हज़ार वर्कर्स हैं जिनकी तनख्वाहें इदारे खा गए, और एक फाइट हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बहुत सारे लोगों को अदायगी भी हुई। मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि तनख्वाहें ना मिलने पर उनके बैकअप पर कोई इदारा खड़ा नहीं होता, कोई सहाफ़ी यूनियन खड़ी नहीं होती। अब जो 5 साल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, 5 साल में सिंध हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया कि उन्होंने सालाना ग्रांट एक रखी कि जो सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए रखी गई। तकरीबन अगर मैं सारी उस इमदाद को मिलाऊं तो 15 करोड़ रुपए साल बनते हैं, और 2 करोड़ रुपए सालाना हेल्थ इश्यूज़ के लिए रखे गए, तो तकरीबन 80 करोड़ के करीब 5 साल में वो पैसे आए। वो पैसे कितनी हद तक फलाह व बहबूद पर खर्च हुए, कोरोना का दौर उस दौर से गुजरा, कितने लोगों को उसमें राशन मिला नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि जब जब सहाफ़ती यूनियंस चलाने वाले लोगों के हाथ में सरमाया आया है, उन्होंने जिन लोगों के नाम पर वो सरमाया लिया उन्हीं का इस्तेमाल किया। जितने शहीद हुए हमारे दोस्त, आज तक किसी एक दोस्त की फैमिली आप मुझे आइडियल दिखा दें कि उनके बच्चों के लिए कोई बोलता हो, उनकी फैमिली के लिए गुजर सफ़र के लिए किसी ने कुछ दिया हो, कहीं एडजस्ट किया गया हो कि किसी तरीके से हम कहें कि ये आइडियल वर्क है PFUJs का या उन यूनियंस का कि जिन्होंने ये मिसाल सेट की है कि ये जो दोस्त हमारे शहीद हो गए, जो घरों में बीमार पड़े हैं, जिनके इलाज की ज़रूरत है, तो ये एक आइडियल चीज़ उन्होंने की। तो ऐसा हमें कुछ नहीं मिलता। और फिर ख़ास तौर पर वो सरकारी सरमाया जिसका ऑडिट पब्लिक होना चाहिए था। मैं सहाफ़ी हूँ, मैं मुख्तलिफ ऑडिट रिपोर्ट्स चलाता हूँ, तमाम इदारों पर तनकीद करता हूँ, मगर जब मेरे अपने गिरबान में झांकने का वक्त आता है तो मैं उस पर बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ, या मैं अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करता हूँ बाकी दोस्तों को कि आप हमसे ऑडिट किस बात पर डिमांड कर रहे हैं, ऑडिट क्यों डिमांड कर रहे हैं। जब हम मिनिस्टर्स से खड़े होकर ये कहें कि आप जो सहाफ़ियों को फंड्स दे रहे हैं उसकी ऑडिट जो है उसको भी दीगर ऑडिट्स की तरह पब्लिक करें, जो कि रूल्स कहते हैं, जो कि तमाम कवानीन कहते हैं, मगर वो फिर हमें नज़र नहीं आती। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा ये रहा है कि अगर हम दूसरों पर तनकीद करते हैं, सरकारी इदारों पर तनकीद करते हैं, हुक्मरानों पर तनकीद करते हैं, फैसलों पर तनकीद करते हैं, तो जो फिर हम करते हैं उसको भी हमें अपने गिरेबान में झांक कर उसकी भी तस्हीह करनी चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमने क्या काम किया और हमने ऐसी कौन सी मिसाल कायम की जो आने वाली नस्ल के लिए सेट की, या हमारे उन दोस्तों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए सेट की जो परेशान है। बिल्कुल ठीक हो गया जी, और ये बहुत ज़रूरी है कि ये देखा जाए, क्योंकि मैं जितने इस चीज़ को देखता हूँ तो पाकिस्तान में सहाफ़त के नाम पे जितने लोग शहीद हुए, जितने लोग बेरोजगार हुए, जितने लोग उठा लिए गए, गुम हो गए,
بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ہم ذکر ابھی کریں گے یہاں پر. جناب علامہ اطلان صاحب موجود ہیں, ان کی جانب بڑھوں گا آگے. علامہ اطلان صاحب کل ہم نے ذکر کیا تھا اعتکاف کا, اعتکاف کے متعلق ہم بات چیت کر رہے تھے, تو ایک سوال مجھ سے کیا گیا, میں ذرا اس پر آؤں گا, بلکہ دو سوالات ہیں, اگر آپ انہیں مرچ کر کے جواب دیتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ اعتکاف کے دوران موبائل فون کا استعمال, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اعتکاف تو کرتے ہیں لیکن پھر وہ موبائل فون ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پہ موبائل فون بیٹھے استعمال کر رہے ہیں, فیس بک چل رہا ہے, واٹس ایپ چل رہا ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مطلب دینی اعتبار سے منع ہے, نہیں ہے, گناہ ہے, نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مساجد فیس رکھ دی جاتی ہے معتکف کے لیے, تو کیا یہ درست عمل ہے؟ پہلا سوال تو موبائل کے تعلق سے ہونا یہ چاہیے کہ موبائل کا استعمال نہ ہو, لیکن جائز ہے کیونکہ آج کل اتنا زیادہ اس کی نیڈ ہے, کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے, اسے کسی بھی چیز کی حاجت ہے, گھر سے منگوانا پڑ گیا کوئی سامان یا کوئی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, میڈیسن کے حوالے سے رابطہ کرنا پڑ جائے, تو موبائل کا استعمال جائز حد تک وہ کر سکتا ہے, لیکن پھر وہ جو ایکچوئل وجہ ہے اعتکاف کی وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی. اعتکاف پہلے بھی ہوتے تھے, اس میں کوئی موبائل نہیں تھا, اس میں تو لوگوں کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ کپڑا ڈال کے بیٹھ گئے تو وہ اپنا منہ بھی نہیں دکھاتے تھے, اور وہ اعتکاف بھی ہوئے ہیں, وہ وقت بھی لوگوں نے دیکھا ہے. لیکن یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی ایک چیز ہے اور اس کی مطلب لوگوں میں ضرورت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہا جا سکتا, تو آپ اس کو کی پیڈ والا موبائل لے جائیں, کیونکہ باحیثیت انسان جب آپ کے پاس اینڈرائڈ ہوگا تو آپ ڈیٹا بھی چلائیں گے, پھر آپ نیٹ پہ بھی جائیں گے, پھر وہ اعتکاف کا مقصد تو حاصل نہیں ہوا, ہو سکتا ہے گناہ گار ہو کے ہی نکلے مسجد میں. تو اس لیے کی پیڈ والا لے جائیں, اس کی ٹون بند رکھیں, اور جو حاجت آپ کو کسی کام کے حوالے سے اس کے لیے کوئی کمیونیکیشن کرنا پڑے گا اس کا استعمال اس حد تک ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا کوشش یہ ہو کہ نہ جائے تو بہتر ہے. اور جو فیس والی بات آپ نے کی, دیکھیں وہ کسی حد تک تو بہتر ہے, کیونکہ پہلے اعتکاف میں ہوتا گیا تھا کہ لوگ اعتکاف میں جا کے بیٹھتے ہیں تو ان کی افطاری کھانا ان کے گھر سے آتا ہے. آج کل مساجد میں کیا ہوتا ہے, یہ انتظام مسجد کی طرف سے مل جاتا ہے, کھانا پینا وغیرہ, اس لیے وہ فیس رکھ دیتے ہیں. اچھا, اس میں سہولت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کے گھر سے کسی کو لانے کی پریشانی نہیں ہے, ٹائم پہ کھانا نہیں پہنچا, ٹائم پہ افطاری نہیں پہنچی, سحری نہیں پہنچی, یہ ایشوز پہلے ہوتے تھے, تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. تو اس لیے فیس وغیرہ اگر کوئی لمیٹڈ اماؤنٹ بناتے ہیں تو جائز دے سکتے ہیں, کوئی سمجھتا نہیں ہے. بلکہ میں تو خود یہ کہوں گا جو معتکفین ہوتے ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ سے فیس نہیں بھی لی جائے تب بھی آپ رمضان سے اعتکاف اٹھنے سے ایک دن پہلے کوئی بھی کم سے کم 1000 روپے تک کا کوئی ایک اماؤنٹ ایسا جو مسجد میں آپ خود دے کے جائیں. دیکھیں, آپ خود سوچ کے دیکھیں, اگر آپ 10 دن کے لیے کہیں رہنے جاتے ہیں, کرایہ دیں گے آپ, بجلی کا استعمال, کھانا پینا ہوگا, تو کتنا اماؤنٹ آپ کا بن رہا ہے, 10-15 ہزار روپے خرچ. اللہ کے مہمان ہیں, وہ تو اللہ کے مہمان ہیں نا, فیس کس فیس کی؟ وہ فیس لوگوں کو دے رہے ہیں کھانے کی. اللہ کے مہمان ہیں, جب نہیں گئے تھے نا پہلے اعتکاف جو پہلے تھے اس میں کھانا گھر سے آ رہا تھا, یہاں کھانے کا انتظام ہے, کم سے کم اتنے تو دیں گے. اچھا, پھر اللہ کے مہمان ہیں تو پھر اللہ کے گھر کی بجلی استعمال نہ کریں. نہیں, مطلب مسجد والے لیں, یہ لازم ہے, مطلب کوئی دے خوشی سے دیتے مسئلہ نہیں ہے, لیکن مسجد والے اس بات کے لیے نہیں دے رہے کہ اس کے بغیر وہ الاؤ نہیں کریں گے. معتکف نے تو نہیں کہا کہ بھائی نہیں ہے ایسا, مطلب آپ نے فیس سبمٹ کروانی ہے, لازمی ہے. نہیں, اگر وہ کھانے پینے کی وجہ سے لے رہے تو صحیح ہے, سمجھ میں آتی بات. اس کے علاوہ لے رہے ہیں تو پھر تو وہ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ایسے پہلے ہوتا نہیں تھا, خود یہ طریقہ بھی نہیں ہے. اگر آپ جا کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, آپ کا کھانا, آپ کی افطاری سحری گھر سے آ رہی ہے, آپ کے سارے معاملات گھر سے آ رہے ہیں, تو پھر مسجد والوں کو اجازت نہیں ہے, بالکل شرعاً جائز بھی نہیں ہے. پھر تو یہ اگر تو وہ کھانا پینا دے رہے ہیں, اس ضمن میں دے رہے ہیں تو بالکل جائز ہے, کھانے پینے کے پیسے وہ لے سکتے ہیں. اخلاقاً میں کہوں گا معتکفین کو کہ ان کو چاہیے کہ خود کوئی نہ کوئی اماؤنٹ دے کے جائیں, کیونکہ وہ مسجد میں ظاہر ہے جب 10-15 دن کے لیے 10 دن کے لیے 100 بندے آ کے بیٹھ جائیں تو پانی استعمال ہوتا ہے, بجلی کا استعمال ہوگا, مشین چلے گی بار بار آپ کی وجہ سے, بل لاکھ سے اوپر کے آ جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے. تو اس میں میں خود بیٹھا ہوں, تو ہم نے کیا کہ 1000 روپے کا اماؤنٹ تقریباً نکالا. ہم 120 لوگ تھے, 1,20,000 روپے جب ہم نے اینڈ میں ہاتھ میں رکھے اور مسجد کے امام صاحب کو بھی کچھ دیے, اور وہ جو خادمین بیچارے وہ جو 5-7 ہزار روپے کی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں, تو سب کی فائنینشیل کوئی نہ کوئی مدد ہوئی ہے. وہ بہت اچھا ماحول تھا, اور اتنا ہم دے سکتے ہیں. آپ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گے, اس سے زیادہ خرچ ویسے ہو جاتے ہیں, تو ہم اللہ کے گھر میں دے سکتے ہیں, اور رمضان کا مہینہ ویسے برکت زیادہ مل جائے گی. چلیں جی, برکت پہ سمیٹ دیجیے, پیسے جو ہے وہ مزداری لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماشاءاللہ جناب علی کلام جناب محترم محمد عمر مزمل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کلام پیش فرمائیں. 3 جناب علی مائک دیکھ لیجیے گا, مائک آپ کے شاید بند ہے, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ 3 اشعار نعت شریف کے. آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا, آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا,
सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या माशाल्लाह सलाम दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या लेकिन वो कभी ख्वाब में आए तो अजब क्या मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत मुँह ढाँप के रखना के गुनाहगार बहुत हूँ मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या मैयत को मेरी देखने आए तो अजब क्या सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज से तना खानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। यह वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। आप रहेंगे हमारे साथ, देखते रहिए करम है रमज़ान। करम है रमज़ान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर, हमारा घर, ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर, टंडो फजल रोड, सेरी शहर से मुत्तसिल। 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर, पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर। तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है
बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। A project of Classic Group, Building Pakistan. करम है रमजान। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज की खुसूसी रमजान नशरियात करम है। रमजान में आप मुलाहिजा कर रहे हैं बराह रास्त निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड से, और मैं शुक्रगुजार हूं स्पॉन्सर्स का जिनमें ग्लेमर पेंट्स, करोना पेंट्स, अलमदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज चिलमाल हाउस, लासीफा ब्रेड, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज और ज़यान रेजिडेंसी। उसके अलावा सहरी का एहतमाम करते हैं जी बेक ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफटॉप रेस्टोरेंट। तमाम तरह आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग हैदराबाद न्यूज के साथ इस वक्त इश्तराक में हैं और इस नशरियात में हैदराबाद न्यूज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जनाब अली, गुफ्तगू यहाँ चल रही थी सहाफत को लेकर और मलक साहब मौजूद हैं, मलक तरीमोद अवान साहब, उनसे बात करूंगा। सर, मैं ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे ना सहाफियों को उठा लिया जाता है, तो जरा ये जो उठाया जाना है या मार दिया जाना, ये इंतहाई मेरे ख्याल में तो नामुनासिब अमल है। एक बंदा अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहा है और फिर इसी वजह से नए आने वाले सहाफियों में डर पैदा हो जाता है कि अगर मैं कोई बात करूंगा तो भाई मेरे साथ भी होगा। तो जरा इस पर क्या गुफ्तगू करेंगे? मैंने पहले भी आपसे आपके तवस्सुत से कहा कि जब तक कानून हमारे पास मजबूत नहीं होगा तो हम सच लिखने में बहुत कमज़ोर होंगे, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। अब देखें, उठाना तो आजकल आम बंदे को भी उठाया जा रहा है। उठाना तो आजकल सोशल मीडिया पे जो लिखता है साफ़ी नहीं, वो भी उठ सकता है, लेकिन जो सच लिखता है साफ़ी ना, उनको कम उठाया जाता है, उनको दूसरे जाने में पहुंचा दिया जाता है। तो शीशे में घर में बैठ के हम समझो दूसरों को पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि सच बर्दाश्त करना ना वो बड़े दिल गुर्दे की बात होती है। और जब एक माफियाज और एक करप्ट किसी आप नासर के खिलाफ लिखते हैं तो कभी भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो आपके खिलाफ जहाँ तक मुमकिन हो सका, जितनी उसमें ताकत होगी उतने ज़ोर से आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी कराएगा, आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा भी करेगा, आप पे झूठे मुकदमात भी बनाएगा। इवन सिंध के मुख्तलिफ शहरों के साफ़ी शहीद हुए हैं, आपको पता है। कुछ टाइम पहले कंदकोट के शायद सुमरो शहीद हुआ है, शिकारपुर के अमीर बख्श बरोई शहीद हुए, मीरपुर खास के हमारे साफ़ी महमूद सुल्तान चांडियो शहीद हुए, शादी लाज के सूफ़ी मोहम्मद खान शहीद हुए। इसी तरह काफ़ी साफ़ी शहीद हुए हैं। आज तक उनके केस क्राइम ब्रांच के सद खानों में पड़े, उनके लवाकिन को इंसाफ नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी तंजीमें हम भी उनको इंसाफ नहीं दिला सके हैं। ठीक है, हमने एहतजाज किया है। अब रिसेंटली आप सखर के साफ़ी जान मोहम्मद मेहर का देखें, उनके लिए पूरे सिंध के साफ़ी रोडों पे थे, साफ़ी तंजीमों ने किरदार अदा किया है। तो इंसाफ का फुकदान है, वो इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जब सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिलेगा, मुल्क के चौथे सतून जैसे आप कहते हैं उसे तस्वर नहीं करेंगे, उसके साथ ही इंसाफ नहीं होगा, तो आम आदमी तो मायूस होगा ना इंसाफ से। तो हम उसी नाजायज़ी के खिलाफ, जो सहाफ़ियों को हकूक़ नहीं मिलते, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों को लिखते रहे हैं। वो लिखते भी हैं, हर जगह पे बयान भी देते हैं, एहतियाज की सूरत में हो, स्ट्राइक की सूरत में हो, कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, सच लिखने वाले सहाफ़ियों को। जब सच लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो माशरे में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं, या ये आजकल हमारे शहरों में कुछ डेवलपमेंट है, तो उसमें सहाफ़ियों का बहुत बड़ा किरदार है। सहाफ़ी आईना दिखाते हैं। अगर किसी मुल्क में मीडिया ना हो तो आप देखें ना, हो तो फिर जंगल और वो पत्थर वाले दौर की बात है। आज हमारे अगर कहीं नेट बंद हो जाता है तो मैं कहता हूँ उनके वहाँ के रिहायशियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सहाफ़ी तो बहुत बड़ा काम है और सहाफ़ियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कोई भी हुक्मरान हो, किसी भी सूरत में हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, पर उनका फ़र्ज बनता है कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ भी दें,
صحافیوں کے لیے جو قانون بنائے ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا ان کو انصاف نہیں ملے گا. یہ تو ایک حکومت یا سرکار کی بات ہے, لیکن ہمارے پاس تو یہ بھی ہے کہ بڑے شہروں کے صحافیوں کو جو مراد ہے وہ چھوٹے شہروں کے صحافیوں کو مراد نہیں ہے. بڑے شہروں کے صحافیوں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں, چھوٹے شہروں کے صحافی تو ازادیہ کام کرتے ہیں, ان کو تنخواہیں نہیں یہ والی ملتی. جو چیزیں مطلب میں نے جہاں تک دیکھا اور جہاں تک میں نے سنا ہے, چونکہ خود پوڈ کاسٹ میں صحافیوں نے بتایا کہ بھئی ہماری تنخواہیں لاکھوں میں, 60 لاکھ 70 لاکھ ایون کروڑ, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سڑک پہ گھومنے والا صحافی ہے جو کہ ہمارے یعنی عوام کے مسائل کو سن کے ان تک پہنچا رہا ہے, جو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے خالی خبریں سنا رہے ہیں یا پروگرامز کر رہے ہیں, تو اس میں جو اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ وہ تو کروڑ پہ پہنچ گیا, یہاں پہ 1000 نہیں مل رہا, تو یہ جو ڈیفرنس ہے یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیں نا, جنرلی صحافی جو فیلڈ میں محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, دھوپ ہو, گرمی ہو, سردی ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, رات ہو, دن ہو, عید ہو, شب برات ہو, وہ بیچارہ فیلڈ میں جو محنت کرتا ہے اس کو وہ معاوضہ نہیں ملتا ہے. اس کو معاشرے میں اونچائیوں نیچائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو اینکر ہیں جو آتے ہیں گھر سے ایک اسٹوڈیو میں, ان کی تنخواہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, ان کو مراحت ہیں, ان کے کانٹیکٹس اس لیول کے ہیں, ان کو ملتے ہیں. تو اس کے سے یہ نہیں کہ جو فیلڈ کا ورکر اس کو ملتے ہیں. اچھا اب دیکھیں جو بڑے شہروں کے صحافی ان کو بین الاقوامی دورے کرائے جاتے ہیں, بین الصوبائی دورے کرائے جاتے ہیں. ہمارے کیپٹل کے جو صحافی ہیں تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ساتھ مختلف ملکوں کے دورے بھی کرتے ہیں, ان کو مختلف مراحت ملتی ہیں. لیکن ہمارے چھوٹے شہر کا صحافی ہے اس کو تو تنخواہ بھی نہیں ملتی ہے, وہ اعزازی کام کرتا ہے. وہ جو یہ کنوینس کرتا ہے یا وہ جو قلم لیتا ہے یا کاغذ استعمال کرتا ہے یا نیٹ یوز کرتا ہے, وہ جو اپنی جیب سے کرتا ہے. ہم تو حقیقی صحافی اس کو تصور کرتے ہیں جو بغیر تنخواہ کے عوام کے لیے کام کرے, لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرے, اپنا قیمتی ٹائم دے. ایسا ہی ہے نا, یہ تو فلاحی کام ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. عرفان صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہم نے دیکھا کہ جو بڑے صحافی ہیں اس کے مطلب چونکہ آپ کا تعلق ہے, آپ خود فیلڈ میں, یہ جو ڈفرینس ہے اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ جتنے بڑے صحافی ہیں جو اینکرز ہیں, جو پروگرامز کرتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ بھائی ہماری تو ڈگری میس کام کی نہیں ہے, ہمیں تو BBA کیا تھا, میڈیا میں آ گئے تھے جی. تو یہ جو سڑکوں پہ گھومنے والے دیکھیں, چلے مانا اگر ڈگری ان کے پاس نہیں ہے میس کام کی اور ان کے پاس بھی نہیں ہے, تو پھر دونوں تو برابر ہی ہوئے نا, یہ تعلقات کی بیس پر تنخواہیں ملتی ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دماغ ہر انسان کو دیا, مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ ایکسٹرا آرڈنری ہوتا ہے, اور وہ جب کہیں نکلتے ہیں تو وہ اپنی ایک پہچان, اپنی ایک کشش سے اوپر آتے ہیں. چیزیں ٹیلنٹ پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی بھی شخص ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا. ایسے تو ٹی وی چینلز کے مالکان اتنے بیوقوف بھی نہیں ہیں, یا جو وہاں مینجمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی میں کچھ ہوتا ہے تو وہ اوپر آتا ہے. دوسرا میں آپ کو سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ بتاؤں کہ حیدرآباد سے جتنے ہمارے صحافی آج تک بڑے شہروں میں گئے تو وہ بہت اوپر تک گئے, اور انہوں نے اداروں میں مین چیئرز یعنی کہ DN کی چیئر ہو, ایڈیٹر کی چیئر ہو, وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور آج بڑے نام ہیں بہت سارے لوگ. اور یہ چیزیں آپ کے ٹیلنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. صرف یہ کہ اگر میں حیدرآباد تک محدود رہوں اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اب میں ایک ادارے میں بیورو چیف ہوں, حیدرآباد شہر کو اگر میں دیکھوں تو بیورو چیف سے اوپر اب کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے. مجھے اگر مزید اپنے آپ کو اوپر لے کر جانا ہے تو مجھے کراچی جانا پڑے گا, مجھے اسلام آباد جانا پڑے گا, مجھے اس طریقے سے بڑے شہر کی طرف جانا پڑے گا تاکہ جو میرا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس میں ترقی ہو. تو یہ چیز اس طرح بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. ملک صاحب نے کہا, اب ملک صاحب کے بدین سے ایک ہمارے دوست ہیں, وہ اسلام آباد میں ایک ادارے کے بیورو چیف ہیں. جب تک وہ بدین میں تھے تو وہ ایک ہاکر تھے, یعنی کہ اخبار سیل کرتے تھے. آج وہ ماشاءاللہ اگر اسلام آباد میں کسی ادارے کے بیورو چیف ہیں تو جب آدمی جد و جہد شروع کرتا ہے تو وہ ترقی بھی کرتا ہے, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹریک ریکارڈ, اس کی رننگ, اس کا کام, اس کی عقل, اس کا جتنا بھی ورک ہے وہ کیا ہے. دوسرا آپ نے جو ایجوکیشن کی بات کی ہے, ماضی میں چونکہ ماس کام جو ہے یہ ڈگری تو ابھی آئی ہے, اس سے پہلے ایم اے جرنلزم تھا. ایم اے جرنلزم کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں چونکہ اخباری ادارے تھے تو وہ ایم اے اردو کو بھی اہمیت دیتے تھے, انٹرنیشنل بین الاقوامی تعلقات عامہ کو بھی اہمیت دیتے تھے, سوشل سائنس کو, پولیٹیکل سائنس کو بھی صحافت میں اہمیت دیتے تھے.
ये डिग्रियां आज भी सहाफ़त में मानी जाती हैं। ये लोग अपॉइंट होते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास कॉम में जो लोग आ रहे हैं वो को बहुत ज़्यादा सीख कर आ रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों की हालत आपके सामने है कि मैं मास कॉम डिपार्टमेंट में अगर जाता हूँ तो मुझे नज़र नहीं आता कि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की वो ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं, किस तरीके से वो सोशल मीडिया की ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं कि वो आकर माशरे में मुकाबला करें और आकर एक सहाफ़त में अहम किरदार अदा करें। बिल्कुल, वो आते उसी तरफ हैं जो सीनियर्स हैं, वो सीनियर्स उनको फिर ऊपर लेकर आते हैं, सिखाते हैं, काम को बताते हैं। तो ये डिग्रीज़ जो हैं, ये डिग्रियां, मुख्तलिफ डिग्रियां सहाफ़त में आज भी एक्सेप्ट की जाती हैं, माजी में भी की जाती थी। और उसमें उर्दू ले लें आप, क्योंकि उर्दू चैनल्स हैं, अच्छी उर्दू के हामिल लोग माने जाते हैं, लिए जाते हैं। सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, आपका बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा, सारे ये वो शोबे हैं जो कि सहाफ़त से वाबस्ता शोबे हैं। तो मुख्तलिफ डिग्रीज रखने वाले लोग जो हैं वो काम करते हैं, आते हैं फील्ड में, अपना नाम बनाते हैं। अच्छा मलिक साहब, हम ये देखते हैं कि चूंकि मेरा ताल्लुक मैथ कम्युनिकेशन से है, मैंने पढ़ा, मैं 4 साल से मैंने इसकी डिग्री ली है, सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अब आज के जो नौजवान है ना, वो मैथ कम्युनिकेशन करने के बाद भी मीडिया की तरफ जाने को प्रीफर नहीं करता। उसका रीज़न ये, एक तो हमारे पास जॉब के मौके का, मतलब जो जाना चाहते हैं तो उन्हें पहली ऑफर ही आती है। मिसाल के तौर पर मैं हैदराबाद का बंदा हूँ, हैदराबाद का शहरी हूँ, मैं अगर कराची जाके इंटर्नशिप करूँगा तो वो इंटर्नशिप मेरे गले में आएगी। मैंने 4 साल की डिग्री ली, उसकी फीस अलग भरी, अब मैं कराची में रहूंगा, उसके पैसे अलग, कराची में सफर करूंगा, उसके पैसे अलग, खाऊंगा पीऊंगा सब अलग। तो वो 3 महीने 6 महीने की इंटर्नशिप करवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं भाईजान आपका इंटर्नशिप पीरियड पूरा हो गया, अभी हमें नीड नहीं है, आप चले जाए। और वो इंटर्नशिप करके वापस घर आ रहा होता है। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि जो नौजवान तबका है जो हमारे साथ निकलता है मैथ कॉम पढ़ने के बाद, वो ये सोच रहा है कि भाई इससे अच्छा है मैं कोई और काम कर लूंगा, मीडिया में नहीं जाऊंगा। तो ये जो नौजवानों की जो ज़हन साजी खराब होना शुरू हो गई है मीडिया को लेकर, इसको दुरुस्त करना चाहिए, और ये अगर करना चाहिए तो कैसे होगी? देखिए, इंसान को मायूस, किसी के साथ उम्मीद ज़्यादा लगा लेना तो वो मायूसी का शिकार होता है। तो तालीम तो कभी भी इस तनाज़र में असल ना की जाए कि मैंने नौकर बनना है, किसी के पास नौकरी करनी है। तालीम तो बंदे को अपने जहन को रोशनी अता करने के लिए, अपने जहन को रोशन करने के लिए, दुनिया में क्या हो रहा है या इंसान को एक पॉलिश हो जाए, उसको उस तनाज़ुर में तालीम हासिल करनी चाहिए। हमारे पास बदकिस्मती से बेरोजगारी इतनी है कि बच्चों को पढ़ाई इस माइंड में जाता है कि भाई आप अच्छा पढ़ो तो आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। मतलब हमारे ये, मैं तो इसका जिम्मेदार पेरेंट्स को भी समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी वो भेज रहे हैं या कॉलेज भेज रहे हैं तो उसका बच्चे का माइंड सेट ये किया जाता है कि भाई आप अच्छे नंबरों से पास होना है, आपने अच्छी मेहनत करनी है, फिर आपको हमने अच्छा नौकर बनाना है। तो आप उनको बचपन से ही अगर नौकर बनाएंगे तो फिर तो वो मायूस भी होंगे और उनका माइंड एक ही सेट हुआ। दुनिया में ये नहीं है, दुनिया में सिखाया जाता है आप कारोबार अच्छा करो, आप एक छोटे से जीरो से स्टार्ट करो। आप दुनिया में देखो जो भी ये बिलियनर हैं, जो अरबपति लोग हैं, इनकी कोई आला तालीम या कोई प्रोफेसर मुझे दिखा दो दुनिया में जो बिलियनर हो या अरबपति हो। तो आपको इससे हट के काम करना चाहिए, हमें सिखाना। आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस का जरिया है, माश, बहुत अच्छा रोजगार है। अभी एक कराची में शायद यूनिवर्सिटी अभी एक खुली है सोशल मीडिया पे बिजनेस के वाले से। मैं समझता हूँ कि हमें मौजूदा जो दुनिया में दौर चल रहा है तरक्की का या रोजगार के मौके पैदा करने का, तो हमारे सिंध के हर शहर में एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो सोशल मीडिया पे, नेट पे बिजनेस करना सिखाए, कैसे अर्निंग की जाती है वो करना सिखाए। हमारे पास सोशल मीडिया को टाइम पास के तौर पे यूज किया जाता है, किसी पे कमेंट पास करने के लिए यूज किया जाता है। चलो सोशल मीडिया ने काफी लोगों को इंसाफ दिलाया है, पॉजिटिव वे में लोग आवाज बनते हैं और उसका बहुत से लोगों को फायदा भी होता है, इंसाफ भी मिलता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमें जो आप मास कम्युनिकेशन हो या पहले जैसे MA होता था जर्नलिज्म में, लेकिन जो सहाफ़ी फील्ड में काम करता है वो उनसे ज़्यादा तजर्बा रखता है, वो ज़्यादा उस चीज़ को समझता है जो एक अदारे में बैठ के प्रैक्टिकली नहीं करता। तो बेहतर तो यही है कि लोगों को आप मोटिवेट करें और उनको बताएं कि आपने नौकर नहीं बनना है, आपने इंसान बनना है। अच्छा, आपने जो बात की ना कि जॉब, सहाफ़त जो है वो जॉब बाद में, पहले एक जज्बा, एक शौक, एक लगन का नाम है। सहाफ़त करना
इतना आसान काम नहीं है जितना हमारे नौजवान समझते हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक आप में जज्बा नहीं होगा आगे बढ़ने का, सीखने का और किसी के लिए काम करने का, यानी कि हम काम कर रहे होते हैं मजलूम तबके के लिए नंबर 1 पर। तो मजलूम तबके के लिए जब आप काम करते हैं तो आपको मुश्किलात आती हैं, आप मुलाजमत से भी निकाले जाते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं। तो जॉब जो है, इंटर्नशिप हमारे स्टूडेंट्स करने आते हैं, करें एक जज्बे, एक लगन, एक शौक़ के साथ करें, क्योंकि वक्त के साथ इंसान तरक्की, मैंने आपको बताया ना कि वही करता है जो कुछ यूनिक लेकर आता है आज के माशरे में, जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और आगे बढ़ने की ये जो कोशिश है उसमें दोस्त तरक्की करते हैं। मैं 2018 में, जैसे मेरे पास इंटर्नशिप पर एक हमारे दोस्त थे, आज माशाल्लाह वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। तो अगर वो उस वक्त ये सोचते हैं कि मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ और इरफान भाई मुझे रोज़ कोड भेज देते हैं कि जाओ इलेक्शन का डेटा लाओ, तो फिर क्या होता? तो इंसान के कदम नहीं रुकने चाहिए, कदम रुक गए तो सहाफत खत्म हो गई। जबरदस्त माशाल्लाह। जी हाँ, हम जाएंगे कलाम की तरफ, तो एक कलाम लेकर उसके बाद फिर जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद रजा साहब से मुल्तमिस हूँ हदिया नात पेश फरमाएं 3 अशार। हुजूर मेरी तो सारी, हुजूर मेरी तो सारी, बहार से हुजूर मेरे तो सारी, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, मेरी तो गास्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज जो मिल रहा है मुझे, सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे, सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी, सियाह कार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा की ये मेरा
से है हुजूर मेरी तो बहुत खूब जनाब मोहतरम मोहम्मद अहमद रजा कादिर साहब ने बहुत प्यारे अंदाज से इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमाई। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मलिक तारिक मदवान साहब को हमसे चूंकि अब जाना है, इन्हें कहीं और भी वक्त दिया हुआ है, तो मैं चाहूँगा मलिक साहब हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे माह रमज़ान के हवाले से? अल्लाह ताला ने एक और रमज़ान शरीफ ज़िंदगी में नसीब किया है और बहुत ही बाबरकत महीना है और ये ख़जाने बरकतों के अल्लाह पाक की तरफ से लुटाए जा रहे हैं और एक मौका दिया जा रहा है, एक चांस दिया जा रहा है। कोई पैकेज होता है ना, पैकेज दिया जा रहा है, उससे फ़ायदा लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ मुसलमान अगर इस पैकेज से फ़ायदा ना उठाए तो वो अक्लमंद नहीं है। तो हमें इस माह रमज़ान के मौके से पैकेज से फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी कोताहियों का, गलतियों का माफ़ी मांगने का एक मौका है। तो हजूर अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत और हौसला दे और हम अपने गुनाहों की बख्शिश करा सकें। और रमज़ान शरीफ के रोज़े तो फ़र्ज़ हैं और हमें रखने चाहिए। माशाल्लाह जैसे कि उसे मतलब सामने बताया कि पैकेज जैसे उधर भाई ने पार्टी वाला पैकेज दिया है और वो आप और बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक कुछ इन्होंने नहीं सब होंगे ना, सभी अलावा साहब भी होंगे ना, आप कौन जाए इसमें? सभी होंगे। अच्छा जी। इंचार्ज तो नहीं होना। तो ये पैकेज है उज़ैर भाई की तरफ से पैकेज है। तो अल्लाह ताला ने तो सारी दुनिया के लिए जो रहमतुल आलमीन है दोनों जनाब अली यहाँ पे चूंकि वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ी नायाब गुफ्तगू हुई। मैं चाहूँगा हैदराबाद न्यूज़ के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? हैदराबाद न्यूज़ दिन अव्वल से ना जब से मैं समझता हूँ सोशल मीडिया चैनल्स शुरू हुए हैं तब से हैदराबाद न्यूज़ एक वे में चल रहा है। उस वे में और इनकी जो प्रोग्रामिंग है या इनकी जो एक्टिविटी है वो एक बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से चल रही है। तो बहुत मुख्तसर टाइम में बहुत नाम कमाया है। मैं तो समझता हूँ हैदराबाद के बच्चे बच्चे को इस चैनल का पता है, उससे बखूबी वाकफ़ भी है, इससे बाहर भी। तो हैदराबाद न्यूज़ के लिए अच्छे हमारे ख्यालात हैं और हमारी अच्छी इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी हैदराबाद न्यूज़ हैदराबाद के लिए इसी तरह, इसी लगन के साथ, इसी जज्बे के साथ काम करता रहेगा। और हर रमज़ान शरीफ में, माह रमज़ान के महीने में जो कर्म रमज़ान ट्रांसमिशन होती है वो भी बाकायदगी से चल रही है और उसकी भी इन्हें बहुत हैदराबाद के लोगों की तरफ से पजीराई मिलती है और उम्मीद है कि ये अच्छी टीम अपना अच्छा काम जारी रखेगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो यहाँ नाज़रीन किराम मलिक तारिक मदवान था, उनसे लेंगे रुखसत। सर आपका बेहद शुक्रिया, आप लाए तशरीफ और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। इरफान साहब मौजूद हैं, अभी मुझे कुछ मज़ीद सवालात हैं मेरे पास करने के लिए, अलावा साहब मौजूद हैं। तो आप कहीं नहीं जाएंगे, हम दोबारा आएंगे, देखते रहिए करम है रमज़ान। करम है रमज़ान, करम है रमज़ान। निस्वा ब्यूटी क्रीम प्लस सीरम आपके जल्द की करे मुकम्मल हिफाजत। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे और हाथों को रखे टोन 1। निस्वा ब्यूटी क्रीम आपके जल्द को बनाए सॉफ्ट और ग्लोइंग। अब से निस्वा। NIP all products। शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, लेकिन सिर्फ मुबारक से काम नहीं चलेगा। मेरा गिफ्ट ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, अपना घर, हमारा घर।
ज़यान रेजिडेंसी। इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना हुआ एक ख्वाब, और इस ख्वाब को हकीकत के रंग दिए क्लासिक बिल्डर्स ने। ज़यान रेजिडेंसी फतेह चौक हैदराबाद से चंद किलोमीटर के फासले पर टंडो फजल रोड सेरी शहर से मुत्तसिल 80-120 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट और फार्म हाउसेस, 40 फीट के वसी रोड पर पार्क, स्कूल, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी और मस्जिद जैसी बुनियादी सहूलतों से आरास्ता। पानी, बिजली और गैस की सहूलियात पहले से ही मुयस्सर, तरक्याती काम तेजी से जारी। टाउन प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी हैदराबाद से मंजूर शुदा। स्कीम का अपना मेन गेट, बाउंड्री वॉल और स्पेशल सिक्योरिटी। ज़यान रेजिडेंसी। और तुम्हें पता है बुकिंग सिर्फ 50,000 रुपए से। वाओ, फिर तो मम्मी डैडी को भी अपने बराबर में घर लेके देंगे। तो फिर देर किस बात की? आज ही अपनी फैमिली के साथ इस प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक करवाएं और अपने ख्वाबों को दें हकीकत का रूप। ज़यान रेजिडेंसी, आपके ख्वाबों की ताबीर। अ प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिक ग्रुप, बिल्डिंग पाकिस्तान। करम है रमजान, करम है रमजान। नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं बराह रास्त निमरा मस्जिद ऑटोबान रोड से, और यकीनी तौर पे आज जो सहावत पर गुफ्तगू हो रही है और जिस तरीके की जो सवालात हमारे जहनों में आते हैं उनको मैं पूछने की कोशिश करता हूँ और फिर चाहते हैं कि हम वो जवाब भी प्रॉपर वे मिल जाए हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। मलक साहब जो है उनको जाना था कहीं, तो वो हमें अलविदा कह चुके हैं, लेकिन इरफान राय साहब मौजूद हैं और अभी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और मजीद फायदा लेंगे जो कि इश्तराक करते हैं इस ट्रांसमिशन में, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नाराज हो जाए तो अली भाई आपकी सहरी कहाँ से आएगी फिर? तो ये बड़ा अल्लाह गिला रहा है जी, वसीला तो वो है ना जी, तो इस पर ही बातचीत हो जाएगी फिर वसीले के ऊपर भी। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी ग्लैमर पेंट्स, कोरोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज चीरमाल हाउस, लासीफा ब्रांड, निज़वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज, ज़यान रेजिडेंसी। उसके अलावा सहरी का तमाम करते हैं जी बिग ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट। तमाम तरह आपका भी शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ इश्तराक कर रहे हैं। जनाब, मैं चाहूँगा हम कलाम ले लें एक, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी हाँ, एक सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज्वाइन किया है। मैं गुजारिश करता हूँ सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हदिया नात पेश फरमाएं। जी बिस्मिल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा
रसूल अल्लाह जबी में भी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और यकीनी तौर पे सनाखा हज़रात जो है बहुत ही शानदार अंदाज से तना खानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे। मैं चाहूँगा एक बार अपना नाम भी आप बताइएगा, आपके नाम वाला पर्चा ज़रा गुम हो गया हमारे पास से जी। हाफिज मोहम्मद तारिक मोहम्मद दारेन। ओके, हाफिज मोहम्मद दारेन। अल्लाह दारेन की नेमत से मलामाल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इन्हें बिल्कुल नेमतें भी दे, रहमतें भी दे। ये दुआ इनके लिए नहीं हुई, ये किसी और के लिए हो गई। अल्लाह जनाब, तो दारैन साहब बहुत ही शानदार अंदाज से तना खानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे। इरफान साहब मौजूद सर, आप से एक सवाल जो कि हम तक पहुंचा है, सवाल ये है कि हम ये देखते हैं शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पे सहाफ़त में कि जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स को आगे नहीं आने देते। मतलब एक सीनियर तबका है जो चले जा रहा है और फिर वो जो है वो जूनियर्स का इस्तेसाल कर रहे हैं, जूनियर्स को इस तरीके से ऑन ग्राउंड खेलने नहीं दे रहे। तो ज़रा इस पे बताइएगा, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बात यह है कि जब हम इस फील्ड में आए थे तो हमारे सामने तो मोस्ट सीनियर लोग थे। मैंने कहा ना कि सहाफ़त वो मैदान है जिसमें आप दौड़ना शुरू करेंगे और मसाइल को दिखाना शुरू करेंगे, हक़ाइक़ पर काम करना शुरू करेंगे और करप्शन की निशानदही करना शुरू करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सही। ना कोई सीनियर रोक सकता है, ना कोई जूनियर रोक सकता है। आपका काम आपको आगे लेकर जाएगा। और ये जो काम है, आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको आपने कहा कि वो स्टूडियो में आते हैं और भारी तनख्वाहें ले लेते हैं। काम भी है पीछे। मकसद इतनी बड़ी भीड़ में से उठकर एक आदमी ऊपर आया और उसने आकर स्क्रीन पर अपना रोब जमा लिया, तो मजाक तो नहीं है। कुछ तो पीछे एफर्ट्स होंगी, कुछ तो उसके पीछे ख्वारी होगी। तो कोई किसी को रोक नहीं सकता इस मैदान में, क्योंकि अब तो ग्लोबल विलेज की सूरत हाल है। सोशल मीडिया बहुत सारे नए चेहरे हमारे सामने लेकर आया है जो मजबूरन सहाफ़ती इदारों को उन्हें अपने अंदर लेना पड़ा है, अपने साथ शामिल इसलिए करना पड़ा है कि सोशल मीडिया पर वो उनकी रेटिंग को तोड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और आज के दौर में तो आप सोशल मीडिया की इस वॉर में किसी को भी नहीं रोक सकते। हर चीज़ देखने वाले के लिए मौजूद है। वो जब पब्लिक देखती है, पब्लिक के लाइक्स आते हैं, पब्लिक का जो पॉइंट ऑफ व्यू वो आता है, तो बड़े बड़े सहाफ़ती इदारे भी लेट जाते हैं और वो भी कहते हैं कि नहीं, इस शख्स को खींचो अपनी तरफ। तो पहचान बनाना आज इतना मुश्किल नहीं है। जिस वक्त हम आए थे उस वक्त इतना मुश्किल होगा। आप अंदाज़ा करें कि हमने कैसे बनाई। मगर जो चीज़ें हमने सीखी, जो चीज़ें मैंने सीखी, मेरी ये कोशिश रही कि जितने मेरे साथ जूनियर अटैच हुए उन्हें हमने आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उन्हें हमने कोशिश की कि अगर वो हैदराबाद में हैं और वो डिग्री उनके पास मास कॉम की है, ज़रख़ेज़ ज़हन है, तो हमने कोशिश की कि उन्हें बड़े शहरों की तरफ ढकेला। क्योंकि एक लाइफ होती है आपकी, अगर शादी नहीं हुई है, आपके पीछे अगर फैमिली का कोई ऐसा जोर नहीं है कि आप परेशान होंगे, तो आपको बड़े शहरों की जानिब हिजरत कर जाना चाहिए, वहाँ जाकर काम करना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास एक आला डिग्री है और आपको ऊपर जाने का शौक़ है, तो फिर मौक़े तो बड़े शहरों में आपको सहाफ़त के हवाले से मिलेंगे। छोटे शहरों में आपको मौक़े बहुत कम मिलेंगे। तो फिर आप शक्ल देखेंगे हमारी तो कहेंगे कि ये सीनियर्स कब जाएंगे। तो ये वाली सूरत हाल इस पर आएंगे। सही, मतलब आप कह रहे हैं कि शहर में कोई सीनियर ऐसा नहीं है जो जूनियर को रोकता हो काम करने? नहीं, ऐसा नहीं है। काम करने वाले शख्स को कोई नहीं रोक सकता। सही है, ठीक हो गया जी। अच्छा, हम ये भी चीज़ देखते हैं कि शहर हैदराबाद में ख़ास तौर पे, चूँकि देखिए सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, अच्छी खासी आबादी है और फिर इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से यहाँ से जो खबरों का तनासुब है वो ज़्यादा होता है दीगर शहरों के मुकाबले में। लेकिन हाँ, फिर ये है कि हमारे पास जो है वो साफियों की भी बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिद्दत जो है वो शहर हैदराबाद में नहीं आ रही है। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि एक दौर था जो कैमरों का दौर था और कैमरे हुआ करते थे, सहाफ़ी दिखता था भाई उसने प्रॉपर चीज़ें ली हुई, हाथों में सब कुछ है, और अब वो बल्कि और पीछे आते जा रहे, मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन तक महदूद हो गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? तरबियत का फुकदान है। देखें, मैं सिंध यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद अगर फील्ड में आया तो मुझे उस्ताद कौन मिला? उसने
कितने प्रोटोकॉल्स मुझे सिखाए, कितनी रिसर्च के तरीके मुझे सिखाए, या कितनी ऐसी ट्रेनिंग्स में मैं शामिल हुआ जहाँ मैंने ये सीखा कि कैसे मुझे रिपोर्टिंग करनी है, क्या चीज़ें मुझे चाहिए। आप देखें साइबर क्राइम का कानून ज़्यादा मुश्किल किन लोगों के लिए हो रहा है? जो सिर्फ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों के लिए नहीं हो रहा जो डॉक्यूमेंट्स के साथ मैदान में। साइबर क्राइम में अगर आपको SIA बुलाता है कि जी आपने रिपोर्ट दी है या आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है जिसमें आपने किसी की किरदार कशी की है, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर रिकॉर्ड, सबूत, हर चीज़ मौजूद है, तो किस ग्राउंड पे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी? सिर्फ जुबान का इस्तेमाल कि वो खा गया, उसने ये करप्शन कर दी और किसी की शख्सियत पर कीचड़ उछालना, ये इखलाकन भी दुरुस्त नहीं है, कानूनन तो जुर्म है। तो ये सोच, ये तरबियत हम जब आए थे माशाल्लाह हमारे उस्तादों ने हमें ये चीज़ें सिखाई। उसकी वजह ये थी कि हम जब आए तो हम प्रेस रिलीज बनाते थे, हमें ये नहीं कहा गया कि आप जाओ रिपोर्टिंग करो। उसमें फिर खामियां निकलती थी कि आप ये काम इस तरह नहीं कर रहे हैं। जब फील्ड में उतरे तो जो स्टोरी लाए 15 दफ़ा हमें जाकर उस पर दोबारा रिसर्च करनी पड़ी कि ये चीज़ का हमें लेकर आएँ, ये चीज़ का हमें लेकर आएँ। आज के दौर में क्या होता है कि सोशल मीडिया पर मुझे एक पर्चा मिला, किसी शख्स ने मुझे, सहाफ़ियों को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है वो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी शख्स ने मुझे एक पर्चा भेजा, यार ये बड़ी करप्शन हो गई है, आप इसको चलाएं। मैंने आंखें बंद की, चला दिया। जिसके अगेंस्ट वो न्यूज़ चलेगी, जब आपने बुलेट फायर कर दी तो उसका रिस्पॉन्स भी आता है। अब अगर वो पर्चा जिसको आपने तहकीक ही नहीं किया कि वो असल है नहीं है, सोशल मीडिया पर मिला या फोटो कापी में मिला, उसका मौक़िफ़ आपने नहीं लिया। सहाफ़ती असूल है कि आपको मौक़िफ़ लेना है, चाहे कितनी ही बड़ी स्टोरी हो, आपको कोशिश करना है कि आपने मौक़िफ़ लेना है। तो खबर चलाने के बाद जब बैक फायर आता है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे होता है, और वो ये होता है कि जी ये पर्चा जो आपने चलाया ये ओरिजिनल तो ये है, आपने ये चला दिया। तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशरे में, इदारों में, जो जब अपने मुफादात पर उन्हें ज़र्ब पड़ती है तो ज़र्ब पड़ने पर वो आपको इस्तेमाल करते हैं, और सहाफ़ियों के कंधे को इस्तेमाल करने का रवाज अब आम हो गया कि जी ये देखें स्टोरी है, ये देखें स्टोरी है। अब जो नौजवान आ रहा है वो सोचता है ये स्टोरी है, चला दो, तहकीक नहीं करता, पीछे नहीं जाता, उसमें मज़ीद चीज़ों को नहीं निकालता, तो फिर वो उसके लिए परेशानी का सबब बनता है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है जी, मैं एक सवाल जरा लम्हा आपसे लूँ पहले, जब तक मतलब चाय पिए, तो उसके बाद हम जो दोबारा इरफान पाएंगे, बड़ा चाय ठंडी हो जानी है जी। तो अल्लामा अदनान साहब, सवाल चूँकि एहतिकाफ के हवाले से चल रहा है, और मसाइल एहतिकाफ में रहते हुए ना बहुत सारे होते हैं जो पता ही नहीं होते। तो एक और सवाल मेरे पास ये था, अली भाई माजरत आपकी जगह ले रहा हूँ, अब टेंशन नहीं, हाजिर है। कल मैं भी एक सवाल कर लूंगा। अच्छा में आ रहा है। ठीक है जी, शैतानी सवाल नहीं, कुछ शरारती सवाल नहीं मेरे जहन में। असल में शैतान तो बंद हुआ, आओ खुले और क्या करना पड़ती है, शरारती थोड़ी बहुत कर। जनाब अली साहब, सवाल ये कि जो एहतिकाफ करते हैं मुअतकिफीन, तो उन्हें ये कहा जाता है भाई एहतिकाफ में बैठ रहे हो तो नहाओ नहीं, या नहाओ तो सिर्फ 10 दिन में एक दफा नहाओ। जब हमारे यहाँ पे दीन इस्लाम कहता है कि अल्लाह के घर में जब जाओ ना तो पाक और साफ होकर जाओ, तो इस शदीद गर्मी में जो बंदा 10 दिन नहीं नहाएगा, आप सोचें क्या हाल होगा, जो बराबर में नमाज पढ़ेगा उसे खड़ा होगा। तो जरा इस पर बताइएगा दीन क्या कहता है। आज 2 सवाल जो एहतिकाफ के ताल्लुक से आपने किए हैं वो ऐसे थे कि अगर आप नहीं करते तो तब भी शायद मैं कोई ना कोई गुफ्तगू करने वाला था। जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। पहले शरई मसला ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई शख्स बदबू की हालत में, चाहे बदबू उसके मुंह से आ रही हो, उसकी बॉडी से आ रही हो, वो बदबू जो है पसीने की वजह से हो या किसी और गंदगी की वजह से हो, ऐसे शख्स को उस हालत में मस्जिद में जाना हराम होता है। अल्लाह, पहली बात तो ये। अब गर्मी का मौसम है, इस हालत में वो जाएगा मस्जिद में इतिकाफ करेगा और 10 दिन वो नहाएगा नहीं, तो जो आप ऐलान होता है ना मस्जिद में कि ये कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, तो फिर कंधे से कंधा कोई नहीं मिलाएगा, बदबू इतनी आ रही होगी। होने चाहिए, इसमें 2 चीज़ों को ख्याल रखिएगा। सबसे पहले तो ये कि जो शख्स एहतिकाफ में बैठेगा, अगर उसको इतना अंदाज़ा है कि यार मैं एक दिन नहीं नहाता तो मेरे जिस्म में पसीने की वजह से बदबू आती है, पसीना बहुत आता है, तो वो जोहर से पहले का जो वक्त है या जोहर की नमाज के बाद का जो वक्त है वो गर्मी का थोड़ा शिद्दत का वक्त होता है, उस वक्त में जाके वो नहा ले एक दफ़ा, यानी इजाज़त है, ये कोई मना नहीं है मसला। और गुस्ल की जो उसको हाजत हो, यानी जब जनाबत की हालत हो, उसी हालत में वो नहाएगा, ये लाजिम नहीं है। उस हालत में तो फ़र्ज होता नहाना, क्योंकि नापाकी की हालत में मस्जिद में रह नहीं सकता। लेकिन बदबू जिस्म से आ रही इस हालत में, चाहे वो पानी से नहाए, चाहे वो इत्र वगैरह लगा के उसको एडजस्ट करे, लेकिन उसकी अपनी जिस्म से जो बदबू आ रही है उसको निकालना, जाहिर करना लाजिम है।
जहाँ तक तो मुफ्ती अहमद यार खान नईम रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है कि कुछ लोगों को बीमारी होती है, उनके बगल से बदबू आती है हमेशा दायमी। आपने फरमाया ऐसे बंदे को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना भी हराम है, अल्लाह, उसकी बदबू की वजह से। तो आम दिनों में किसी को बीमारी हो, नमाज जमात से नहीं पढ़ सकता। और 10 दिन में एतकाफ में आए, जब पूरी खलकत मस्जिद में आई हो, तो 4, 6, 8, 10 की वजह से पूरी मस्जिद डिस्टर्ब हो, मस्जिद का तकद्दुस पामाल हो, तो इंतजामिया को चाहिए थोड़ा सा हौले आते रखे मेहरबानी करके। और ये अखलाकी, जैसे मैंने एक बात कही थी कि वो जाने से पहले कुछ ना कुछ पैसे मोतकिफ दे के जाए, उससे फ़ायदा ये होगा ये बिजली के जो बिल आएंगे ना, पानी का इस्तेमाल, ये थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, इंतजामिया पे बोझ नहीं पड़ेगा और इनके लिए नहाने के भी मसाइल नहीं होंगे ज़्यादा। लेकिन ये नहा सकते हैं, बिल्कुल नहाएं अगर हाजत है ऐसी कि बदबू आएगी तो, और नहीं है तो ठीक है, इतने वगैरह से एडजस्ट करें इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मोबाइल का जो इस्तेमाल होता है, जैसे याद आ गई बेगम की, कोई होते हैं ऐसे बेचारे आशिक मजबूर हैं तो वो फ़ोन कर लें, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे अल्लाह साहब इन लोगों के लिए? एहतियात इसमें ये कि अपनी बीवी से भी बात नहीं की जाए तो बेहतर है, सही, क्योंकि अगर याद आने पे बात कर ली, फिर उससे ज़्यादा कुछ और क़यादत आ गया तो भी परेशानी का सामना हो सकता है। तो फिर वही बात है कि पहले नहा रहे थे पसीने की वजह से, अब शायद कोई और वजह बन जाए, तो इसलिए बेहतर यही है कि ना करें। और मेरा ख्याल है कि जो लोग यहाँ मस्जिद में आते हैं शादीशुदा, जो नया कपल हो वो तो कर सकता है बात, वो तो मतलब उसको तो याद आ ही जाती है, लेकिन जिनकी शादी को 10-15 साल हो गए वो सुकून ही महसूस करते होंगे कि चलें जी, मतलब सुकून है, जान छुटी हुई है, कोई दिन तो वो आवाज़ नहीं आएगी, कोई दिन तो कम से कम वो जो चीख पुकार होती है, आदू नहीं लाया, टेंडे नहीं लाया, उससे मैं आज़ाद नहीं हूँ। ठीक हो गया जी। इरफान साहब, हम ये देखते हैं शहर हैदराबाद में कि जो साफ़ी हज़रात होते हैं, जब वो बीमारी की कंडीशन में आते हैं, अपने बुढ़ापे को पहुँचते हैं, तो फिर एक लावारिस शख्स की तरह उनको छोड़ दिया जाता है। ना इदारे सपोर्ट कर रहे होते हैं, ना ही ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही होती हैं, और फिर वो उसी कसम उसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिन्होंने पूरा टाइम काम किया होता है। तो ये अच्छा, फिर जब वो बीमार होते हैं तो उनके लिए हैदराबाद की जो यूनियंस हैं, साफ़ी यूनियन, वो भी नहीं काम कर रही होती। हम ये भी सुनते हैं कि फंड तो बहुत आता है साफ़ियों के लिए। तो ये जो सिलसिला है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें इदारों की नाअहली है, ऑर्गेनाइजेशंस की नाअहली है? देखें, इसमें विफाकी और सूबाई इदारों की नाअहली है। अच्छा, विफाकी सतह पर प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का रोल बहुत अहम है, इसी तरीके से सूबाई सतह पर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का रोल बहुत अहम है। इन इदारों की ये जिम्मेदारी है कि ये सरकारी सतह पर जो सहाफ़ियों के कवानीन, जो लेबर लॉज हैं या जो दीगर कवानीन बनाए गए हैं जिससे कि सहाफ़ी बरादरी को कुछ फ़ायदा हो, उनको फॉलो करवाने के लिए इदारों पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। जब एक सहाफ़ी कहीं जॉब करता है तो लेबर लॉज भी लागू होते हैं, उस कवानीन के तहत रजिस्ट्रेशन और फिर ओल्ड एज बेनिफिट के फ़वाइद और ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। मगर अफसोसनाक पहलू ये है कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनमें जितने आज तक अफसरान काम करते आए हैं वो सिर्फ़ एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम करते आए, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा नहीं किया जो बुनियादी ज़िम्मेदारियां हैं। इसमें हमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या कोयटा, पेशावर में चूँकि सीनियर सहाफ़ी अप्रोच कर लेते हैं मिनिस्टर्स को या सीएम को, तो वहाँ मसाइल हल होते नज़र आते हैं कि किसी दोस्त को अगर बहुत ज़्यादा बीमारी का सामना है तो उसे अच्छे पैसे उसके हस्पताल को दे दिए जाते हैं ताकि उसका इलाज हो, मगर छोटे शहरों में फिर वो धक्के खाते रहते हैं। एक तो ये मसला है कि हुकूमती सतह पर हुकूमत को अपने इन सरकारी इदारों को बेहतर करना होगा, ताकि ये सर्विसेज अपनी बेहतर करेंगे तो ये मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। दूसरा ये कि जो सरकारी सतह पर फंड्स दिए जाते हैं इश्तहारात की शक्ल में इदारों को और सहाफ़ियों को फलाह बहबूद की शक्ल में, इनका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर ये हो और चेक किया जाए, ऑडिट बाकायदा लिया जाए और दुरुस्त सिमत में अखराजात को चेक किया जाए, तब भी ये मसाइल पैदा नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर जो हमारे दोस्त शहीद हो गए उनकी फैमिलीज़ को भी एक अच्छा अमाउंट हर माह मिलेगा ताकि उनके बच्चे भी अच्छी तालीम हासिल कर सकें। वैसे तो तकरीबन 70% सहाफ़ी पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनके बच्चे ना अच्छी तालीम हासिल कर पा रहे हैं ना अच्छी खुराक हासिल कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इदारों में जो सैलरीज़ हैं वो तो जैसे फैक्ट्रियों में सैलरीज़ हैं, इस तरह की सिचुएशन है। और इन तमाम चीज़ों पर काम करने वाली जो तंजीमें हैं, जो PFUJs के फोरम हैं, माजी में उनका किरदार इंतहाई अफसोसनाक रहा है। मुस्बत काम हमें कम नज़र आया है
और हमें लीडरशिप जितनी भी बनी उसने सिर्फ अपने शहर की हद तक, अपने इर्द गिर्द के हल्का अहबाब की हद तक फ़वाइद हासिल किए हैं। सहाफ़ियों के लिए जो बुनियादी मसाइल पर काम करना था वो उन्होंने नहीं किया, यानी कि निचली सतह तक वो चीज़ नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी। तो ये फुकदान हुकूमती सतह पर है। हुकूमती इदारे अगर अपना कंट्रोल बेहतर करेंगे, फंड्स को प्रॉपरली चेक करेंगे, ऑडिट सालाना बाकायदा पब्लिक होंगी और उस पर एतराज़ात सहाफ़ी जो कि बड़े से बड़े जंगजू से लड़ जाते हैं, मगर जब अपनी लीडरशिप के गिरेबान में झांकने की बारी आती है तो उनके लिए लफ्ज़ भी एक नहीं निकलता। तो ये वाला रवैया भी जो है ना, ये फिर आपको पशेमान करता है और इसकी वजह ये है कि फिर जो लोग जिनके पीछे आप चल रहे होते हैं वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो हुकूमत अपनी सतह पर अगर प्रॉपर काम करेगी, जिसमें ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि 18 माह की हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो कदम उठाया सहाफ़ियों के लिए, वो सबसे अहम कदम था। वो कदम था हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि 10 लाख रुपए की पूरी फैमिली की सहाफ़ी के लिए इंश्योरेंस, जिसके बाकायदा फॉर्म जो है वो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन वसूल किए। और हुकूमत इलेक्शन में जब गई है, 18 माह के बाद निगरान हुकूमत जो है वो आई है, तो ये पेमेंट बाकायदा शहबाज शरीफ साहब करके गए कि जी ये कार्ड जारी कर दें और अगले महीने जारी हो जाएंगे। मगर आज आप देखें कि मैंने अभी कुछ दिन पहले पीआईडी इस्लामाबाद में किसी दोस्त के ज़रिए रब्ता किया कि इन हेल्थ कार्ड्स की पोजीशन क्या है, तो उन्होंने कहा अभी उस पर काम हो रहा है। यानी कि सरकारी इदारों में बैठे अफसरान की काबिलियत इतनी आला है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक मंसूबा देकर जा रहा है, पैसे देकर जा रहा है, और वो उस मंसूबे पर खामोश हो गए। इंश्योरेंस कंपनी को भी अगर वो पेमेंट की गई, क्योंकि मैंने जितनी भी उस दौरान खबरें सुनी, प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि हमने ये पैसे दे दिए हैं और ये हेल्थ इंश्योरेंस तमाम सहाफ़ियों को मिलेगी ताकि उनका, उनके बच्चों का इलाज मुआवजा अगर कोई मुसीबत होती है तो हो सके। आज वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा बने तो अब ये कहा जा रहा है कि इस पर दोबारा काम हो रहा है। इट्स मीन कि प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए था कि उनके एक हुक्म की हुक्म अदूली क्यों हुई और उस पर काम क्यों नहीं हुआ, और उस सूरत हाल में जितने वो सरकारी अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए। इसी तरीके से सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के हेल्थ इंश्योरेंस का सोच रही है। तो मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, मैंने लास्ट जो मिनिस्टर थे उनसे भी ये बात की कि देखें, आप अपने इदारे को मजबूत बनाएं। सहाफ़ियों में इख्तलाफात हैं, सहाफ़ी यूनियंस होने की वजह से एक दूसरे के साथ चेहरे, किसी का फेस इस तरफ है किसी का इस तरफ है, तो सरकारी इदारा इन्वेस्टिगेट करे कि कौन सहाफ़ी है और उसको हेल्थ कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड जो हुकूमत दे रही है वो उसको बराज दिया जाए, बजाय इसके कि कमेटी बनाई जाए, उसमें 2 यूनियंस के लोग हों, 3 यूनियंस के लोग ना हों, वो कहें कि हमारे मेंबर को मिल जाए, इनको हम पीछे हटा दें ताकि इनका एक असर सूख जो है वो गिरे, हमारा बढ़े। तो ये वाली जो सियासत है उसको रोकने के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, सिंध हुकूमत को अपनी बुनियाद पर काम करना होगा। और ये जो एक बीच में इख्तलाफी कैफियत है उसकी वजह से एक दूसरे से ज़ाती अनाज की बुनियाद पर महरूम रखते हैं सहूलियात से सहाफ़ियों को, तो वो उनके अपने हुकूमत कोशिश करती है कि सबको लेकर चले, मगर फिर हुकूमत को अपनी बुनियाद पर ये काम करे। बिल्कुल ऐसा ही है जी, और ये होना चाहिए। अच्छा इरफान साहब, एक और चीज़ मैं ये देखता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले देखा था कि आपने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट्स के लिए बिलखुसूस, और वो आपका अपना ज़ाती वो था, उसमें आपको कोई इदारे का मामला नहीं था, आपने खुद ये सोचा था कि भाई बच्चों को सिखाना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से चूँकि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा इदारा है, मेरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमने देखा कि स्टूडियो मौजूद है, कैमराज मौजूद है, सारी चीज़ें हैं। हमारे चेयरमैन साहब जनाब कासिम निज़ामानी साहब, वो भी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं इसमें बेहतरी ऐड कर दें, लेकिन जो हमारा सिलेबस है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव करके भेजती है, हम 3 सालों तक वही पढ़ते हैं कि आपने खबर लिखनी कैसे है। यकीन कीजिए, मैंने 3rd ईयर में आगे जो खबर पढ़ा है ना, वो ये पढ़ा है कि न्यूज़पेपर बाउंडेड होता है, अनबाउंडेड होता है और मैगजीन बाउंडेड होती है, बस सिस्टम है। वो इतना डाउन है इस वक्त कि वो 50% स्टाफ आपका एकेडमिया होना चाहिए, 50% स्टाफ आपका फील्ड का होना चाहिए, जिसका ऑप्शन सिंध यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है आउटसोर्स की शक्ल में।
मगर आउटसोर्स की शक्ल में आप स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि कितना आपको सहाफ़त सिखाई जाती है, कितने रूल्स आपको सिखाए जाते हैं। इंटर्नशिप हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे आपने कहा ना कि कोई एमए किया हुआ, इंटर किया हुआ सहाफ़ी बन रहा है आकर, तो हमारी इंटर्नशिप स्टूडेंट्स को सिखाने की ज़ाती बुनियाद पर उनको बताने की वजह ये होती है कि पढ़ा लिखा नौजवान आ गया है, उसको हम वो जो बददिल हो रहा है, फील्ड में आने से पहले ही बददिल हो रहा है, उसको हम थोड़ा इनकरेज करें कि नहीं यार आप आएँ, मुकाबला करें और आगे निकलें। तो ये वजह है कि हम कोशिश करते हैं कि उनको आगे लाएं। जितने दोस्त आज तक आगे आए, जितने बच्चे आगे आए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कई लोगों ने किया है। तो वो सलाहियतें मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर डिपार्टमेंट को सिखाने की ज़रूरत है, डिपार्टमेंट को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और इस पर वाइस चांसलर को खसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि आउटसोर्स 50% वो करें। जो स्टूडेंट हमारा आ रहा है उसको मायूसी से बचाएं और ऐसे लोगों को जो कि अच्छी तरबियत दें, सिखाएं कि फील्ड वर्क क्या है, काम कैसे होना है, सहाफ़त क्या है, उसमें अब तब्दीलियाँ क्या आ रही हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरत के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होनी चाहिए, नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आप ये तमाम मसाइल जो डिस्कस कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी अपग्रेड नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं ये गुजारिश करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के वाइस चांसलर साहब से भी, चूंकि मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा, और स्टूडेंट की आवाज़ को सुनना बड़ा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं चीज़ों को ना, और फिर हम चूंकि फील्ड वर्क के भी हैं तो इससे थोड़ा और समझते हैं। सर कासिम निज़ामानी साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन है मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के, मैथ कम्युनिकेशन के, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ों अपग्रेड होना चाहिए। जो हमारी सराउंडिंग्स है उनमें बहुत ज़्यादा बेअतमादी पाई जाती है इस चीज़ को लेकर कि भाई मीडिया में जाएंगे तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, तो इस वजह से लोग उससे या स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो खुदारा इस चीज़ को देखिए, और कम से कम मीडिया एंड कम्युनिकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है मैथ कम्युनिकेशन, उसको मजीद बेहतर करें, वहाँ मौजूद सहूलियात को यूटिलाइज किया जाए, ताकि जो सालाना की बुनियाद पर हमारा बच्चा आता है वहाँ पढ़ने के लिए वो उससे कम से कम इस्तेफादा हासिल कर सके। जनाब एक चीज़ और, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया यानी कि वेब चैनल्स जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा हाइप पर हैं, और हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया यानी वेब मीडिया में एक ये फ़र्क आया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर किसी तबके की आवाज़ नहीं बन सका तो उसको कवर किया सोशल मीडिया ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टाइम और दीगर चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे पैक्ड होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया को ये फ़ायदा है कि वो हर चीज़ को बगैर किसी रुकावट के अबूर कर सकता है। तो हैदराबाद में हम ये देखते हैं कि वेब चैनल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा होता, मतलब एक जंग देखी है मैंने तो वेब चैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स के लोगों के दरमियान में, तो इस पर क्या कहेंगे, मतलब अब तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, मैंने जो अपने जर्नलिज्म का आगाज़ किया वो न्यूज़पेपर से किया, और नेशनल लेवल का एक न्यूज़पेपर, और उसमें हमने जब काम शुरू किया तो उसके कुछ अरसे बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया को आज एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी चैनल्स नए नए आए तो यही सूरत हाल हमारे साथ उस वक्त हुई। अच्छा, कि जब हमने टीवी जर्नलिज्म को ज्वाइन किया और हमने काम शुरू किया तो जो अखबार से वाबस्ता लोग थे वो उनकी ज़ुबान से हमें एक चीज़ सुनने को मिलती थी, ये तो सहाफ़त है। ये कौन सी सहाफ़त है? ये सहाफ़त है जो हम कर रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये कि सोशल मीडिया के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यूज़पेपर मीडिया से वाबस्ता लोग जो हैं वो ये अब सेम ज़ुबान ये बात कर रहे हैं, मगर दुनिया में ये तब्दीली आती क्यों है, ये बुनियादी बात है। देखें, अखबारी दुनिया में जब आप किसी की ज़ुबान बंदी करेंगे उसका मुतबादिल दुनिया में आता है, और उसका मुतबादिल दुनिया में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज जो आवाम के मसाइल नहीं दिखा रहा है, उसे आवाम की चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है, न्यूज़पेपर्स को दिलचस्पी नहीं है, तो उसका मुतबादिल क्या आया है? सिटीजन जर्नलिज्म, सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि आवाम या जो जमहूर है, जो मुल्क है, जो माशरा है, वो ये देखना चाहता है कि मेरे साथ अगर ये ज्यादती हो रही है तो मेरे साथ खड़ा कौन है। अगर प्रिंट मीडिया नहीं खड़ा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं खड़ा, तो तीसरी जुबान माशरे में जन्म ले चुकी और वो अब लेकर चल रही है, उसको रोकना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि
हर आदमी आज मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के ज़रिए सोशल मीडिया से जुड़ा है। टीवी चैनल्स को वो देखता है या नहीं देखता है, अखबार तो खैर पढ़ने का एक रवाज ख़त्म हो चुका शहर में। जो स्टॉल्स हैं आप कभी जाएं वहाँ सर्वे करें, पूछें कि कितने अखबार आपके बिके हैं, तो आपकी उंगलियां जो हैं वो मुंह में आ जाएंगी कि यार ये सूरत हाल है। तो ये वक्त की तब्दीली और उसमें जिद्दत उस वक्त पैदा होती है जब आवाज़ को बंद किया जाता है। वो कोई भी माशरा हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, ये एक हिस्ट्री है कि जब जब आवाज़ को बंद किया गया, सहाफ़त को बंद किया गया, एक नई शक्ल में वो सामने आई। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब चूंकि वक्त हमारे पास कलील है और हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मायने खेज़ भी है, और यकीनी तौर पे जो है वो हम लोग जो है वो क्या नाम है अपना कोशिशें करते हैं कि इस गुफ्तगू से किसी चीज़ को अख़ज़ कर लिया जाए। और यकीनी तौर पे जी आप मुझे बताते रहे, मैं सुन रहा हूँ। तो जो है हमारी ये कोशिश है कि हम लोग जो है वो आपको जो चीज़ें बता रहे हैं ये मसाइल हर शोबे के हैं, तो कोशिश हमारी है कि हम हर शोबे के लोगों से उसके मसाइल पर बातचीत करें और उन मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाएं। जनाब आली, तो इरफान साहब चूँकि अब हम अपनी बात को समेटेंगे, मैं बात करूंगा चूँकि हम हैदराबाद जैसे बैठे हैं, उदैर खान रईस साहब की जो खिदमात हैं हैदराबाद न्यूज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी जो सरपरस्ती रही यानी कि सुल्तान रईस साहब, क्योंकि आपके दोस्त भी थे और फिर आपकी ही सहाबत के शोबे से वाबस्ता थे, तो उन्हें आपने किस तरह पाया, कैसी शख्सियत थे, और फिर उनके साहिबजादे उदैर खान रईस जो पूरी काविश कर रहे हैं शहर हैदराबाद में हैदराबाद न्यूज़ को लेके, फिर हैदराबाद न्यूज़ जो छोटे छोटे मसाइल को उजागर करता है, शायद भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं कर पा रहा, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, सुल्तान से मेरा ताल्लुक सन 2011 से जुड़ा। अच्छा। और दुनिया टीवी में जब मैंने ज्वाइनिंग दी तो हम 2 अहबाब थे इस इदारे में। बड़ी अच्छी एक कोऑर्डिनेशन रही, बहुत अच्छा और बहुत नफीस आदमी। मुझे उसका जो सब्र था ना, उस शख्स का जो सब्र और जिस तरह उसका बात करना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता था कि जी एक आदमी को आप मकसद बेपनाह किसी तरीके से उसको दबाएं या उस पर असर डालने की कोशिश, मगर उसका सब्र जो है वो आपे से बाहर ना हो। ये बहुत कम लोगों में जो है ये सलाहियत है। सूरत हाल सिर्फ अफसोसनाक ये रही कि जब जिगर की बीमारी में मुब्तला हुए वो, तो कई बार इस मौजू पर बात हुई। लास्ट टाइम हमने कोशिश की एक एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जमा कराई तमाम शवाहिद के साथ। हमारी ख्वाहिश थी कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है वो पेमेंट करे जो बजट उनको मिलता है हेल्थ का सालाना। और कराची में जैसे अभी लास्ट टाइम मैं गया था तो मुझे मज़हर अब्बास साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि हमने कराची में निगरान वज़ीर आला से 70 लाख रुपए इलाज के लिए दिलवाएं एक दोस्त को। तो इसी तरह की हमारी भी ख्वाहिश थी, हमने राब्ते किए, मगर बेहिस माशरा है, बेहिस इदारा है और बेहिस तंजीमें हैं। हमारे पास ये अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बहुत प्यारे प्यारे हमारे दोस्त इस दुनिया से चले गए। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो साहिब इख्तियार थे वो बेहिस थे, जो कुछ कर सकते थे वो बेहिस थे। जनाजों में आकर कंधा देकर बैठकर फातिहा करके अफसोस का इजहार कर देने वाले वो लोग जिनके इख्तियार में था कि वो किसी भी शख्स के लिए कुछ कर सकते थे, वो जवाबदेह यकीनन खुदा को होंगे। क्यों? क्योंकि एक शख्स जुस्तजू करता रहा, राब्ते करता रहा, उसके बावजूद साहिब इख्तियार लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। और उसके इंतकाल के बाद 1 लाख 2 लाख 3 लाख की इमदाद दे देना एक ऐसी बीमारी में जो 2-3 लाख रुपए की आजकल हैसियत क्या है, उसकी फैमिली के लिए वो क्या है। उसकी फैमिली के लिए तो उस शख्स की ज़िंदगी ज़्यादा अहम थी जब वो उसके लिए कह रहे थे कि इसके लिए कुछ कर दें। तो ऐसे सहाफ़ी हमारे बहुत सारे दोस्त इसी परेशानी से दुनिया से चले गए। राशिद शफी जिगर की बीमारी में फौत हुए, उनके साथ भी सेम सिचुएशन रही। तो एक प्यारा इंसान इस दुनिया से चला गया। सुल्तान के घर से भी मेरा एक अच्छा ताल्लुक़ है। उज़ैर माशाल्लाह जिस तरह मेहनत करता आया है, जिस लगन से, जैसे आपने कहा ना कि मैंने आपको कहा लोग मायूस हो जाते हैं,
तो आप उज़ैर से सीखें कि इतने लंबे एक ट्रैक पर उसने काम किया है, सोशल मीडिया पर एक ग्रिप बनाई है, बेपनाह मुश्किलात फेस करता हुआ गुजरा होगा, मगर उसने ये साबित किया कि वो साबित कदम है और उसने एक चीज़ को खड़ा किया है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है और ये एक मिसाल होती है, एक ऐसी मिसाल होती है कि आप देखकर उससे सीख सकते हैं कि देखें कितने उतार चढ़ाव से एक शख्स गुजरा और उसके बाद भी वो खड़ा है और उसके बाद उसने अचीवमेंट्स की हैं। तो सीखना चाहिए ऐसे नौजवानों से जो जिद्दोजहद अपनी जारी रखते हैं, कोशिश करते हैं कि माशरे में अपना मकाम बनाएं और वो मकाम बनाते हैं, क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक हो गया जी जनाब आली। अब चूंकि अब वक्त कलील है, एक सवाल और अल्लामा साहब आपको जाने पाऊंगा, एक सवाल एतकाफ के हवाले से ही जो है मैं दोबारा पूछना चाहूँगा। हमने देखा है कि जब नौजवान लड़के जो है वो एतकाफ में बैठते हैं तो एक उमूमी तौर पे ना एक ये कह लें मामूल बन जाता है एतकाफ पे। जब मैं बैठा तब भी मैंने चीज़ देखी कि फजर की नमाज के बाद जी वो सहन में गैजिंग लगेगी और उसमें दुनियावी बातें भी होंगी, कहे भी लगेंगे और फिर उसमें दुनियावी बातों में अगर आप समझो तो वो लड़कियों का जिक्र भी होगा जी, तो दीगर तमाम तर मामलात भी होंगे। तो इसका ज़रा मुझे बताइएगा कि ये एतकाफ में बैठ कर चीज़ें करना क्या जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मस्जिद में दुनियावी बातें करना तो वैसे भी गुनाह है और सिर्फ दुनियावी बातें नहीं होती, उसके अलावा कह रख के जो है वो बिल्कुल हंसी मजाक भी चल रहा होता है। और हदीस में तो यहाँ तक आया कि मस्जिद में कहका लगा के हंसने वाले की कब्र में अंधेरा होगा, यानी उसका कहका जो वो मस्जिद में कब्र में अंधेरा लाता है। इसमें होना ही चाहिए कि जब एहतिकाफ शुरू होगा तो बिल्कुल आगाज़ में ही बहुत सारी एहतियातें, बहुत सारे मसाइल जो गुनाह की तरफ ले जा सकते हैं या जिससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता है, वो कोई भी काफ़िले का जो एहतिकाफ का जो काफ़िला उसका जो अमीर है वो या मस्जिद का इमाम कोई भी खड़ो की एहतियात पहले बता दे कि इन बातों से आपने एहतियात करनी है, इन चीज़ों पे अमल करना है ताकि आप यहाँ पे आए नेकियाँ समेटते हैं, आप गुनाह लेके ना जाएं। अब जो लोग कर रहे होते हैं वो आप बताएं फजर के बाद, ये सिर्फ फजर के बाद नहीं होता है, ये जब भी मौका मिल जाए। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि बाज़ औक़ात एहतिकाफ में या तो इबादत वगैरह के मामले इतने ज़्यादा मुसलत कर दिए जाते हैं कि वो थक जाता है इंसान, वो बोलता है थोड़ा सा मैं बैठूँ गेट टुगेदर करके ईजी करूँ। तो तहम्मुल होना चाहिए थोड़ा सा और एतदाल पसंदी के साथ 5 नमाज़ें पढ़ें, मुनासिब वक्त पे कुरान पढ़ें, दूध पाक पढ़ें, दुआएं करें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें। यानी अगर आप फ्रेश रहेंगे, तबीयत बेहतर रहेगी तो आप इबादत में आपको खुशो खुशू भी आएगा। तो लोग इसलिए बैठ जाते हैं कि चलो यार बैठे फारिग से, तो मस्जिद में अगर आप फारिग बैठे इबादत करें, आप मस्जिद में ये दुनियावी बातें जो की जाती है ये गुनाह है और इसकी सख्ती से मुमानत भी है। मस्जिद के इमाम साहब पे मैं ये कहूँगा कि उन पर लाजिम है कि वो एहतिकाफ जब शुरू हो सर के वक्त मगरिब के बाद ही वो पहले एहतियात बता दें और उसके बाद फिर ऐसा होता है कि जब 100-200 लोग बैठते हैं तो हल्के बन जाते हैं, फिर उनमें हर बंदे में हल्के में कोई ना कोई उनका बड़ा होता है जो चलाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी वो चीज़ों को लेके चले। इस तरह से एहतियात की जा सकती है, लेकिन जो ये करता है ऐसे वो गुनाहगार है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है और हमने तो ये भी देखा है एहतिकाफ में कि कहा जाता है यार तुम 6 घंटे सो रहे हो, एहतिकाफ में बैठे हुए भाई कम सो। तो ये भी तो मामला है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। मैं 2013 या 14 में बैठा था एहतिकाफ में, तो वहाँ 2 मसाइल आए थे। अव्वल तो वही जैसे आपने नहाने का है, आप नहाने की बात करें वो साबुन से मुंह नहीं धोने देते थे वहाँ, तो उसका जो नुकसान ये हुआ 2 दिन निकले बामुश्किल। 22वें के बाद मेरी पोजीशन ये थी कि असर की नमाज के लिए मैं खड़ा हुआ, मुझे नींद के झटके लग रहे थे। तो उसके बाद मुझे अगर नहाने की हाजत पेश आती तो मैं नहाता भी था, मुझे मुँह धोना मैं धोता भी था। तो उस पर थोड़ा सा उन लोगों ने मुझे कहा भी, तो ज़ाहिर है भी अलहमदिल्ला मैं फारिग तहसील था उस पर 2011 में फारिग हो चुका था, तो मसाइल में बाखूबी जानता था। तो फिर मैंने बड़ी शिद्दत के साथ रद्द किया कि आपने जो खामा खा अपनी तौर पर एक शरीयत बनाई है ये नहीं है। मैं वुज़ू करूँ अगर, क्योंकि नॉर्मल दिनों में भी आप नहाते भी हैं, मुँह भी धोते हैं साबुन से, उसके बाद आपको अपनी तबीयत में ताजगी महसूस होती है। मैं नींद से झूम रहा हूँ, मैं नमाज में खुशो खुशू नहीं आ रहा, मैं कुरान नहीं पढ़ पा रहा, मैं करने के आया हूँ मस्जिद में। तो ये बाज़ का जो शिद्दत पसंदी होती है ना, ये भी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ जायज़ उसको जायज़ रखें, आप अपने तौर पे वाजिब फ़र्ज़ में ना लाएं मेहरबानी करके। तो ये जो नाअहलों को मनसब मिलता है ना, फिर ऐसा ही बेड़ा गर्क होता है। बल्कि इमाम शाफी का जो कौल है वो कहते हैं कि ना अहल को इल्म देना भी ऐसा जैसे सुअर के गले में हाथ पहना दिया आपने। तो इसलिए कि हर चीज़ का चेक एंड बैलेंस हो के जो अमीर बंदा है जो काफिले को लेकर चला रहा है पूरे को, वो इतना अहल भी है या नहीं। ऐसे भी लोग थे हमारे साथ, तो वो हमसे हल्की में आके दुआ सुन रहे थे कि आप जनाजे की दुआ सुनाए मुझे। तो जब मैंने सुनाई तो वो अपने पड़ोस वाले कान में कहा हाँ भी सही सुनाई क्या इसने, यानी उसे खुद भी नहीं आती थी। आप पढ़ा देते, आप उसे लेट में पढ़ा देते, बहुत सारी चीज़ों की इस्लाम मैंने खुद भी की। होना ही चाहिए कि ये साबुन से मुंह धोना करना, ये सारी चीज़ें इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जो जितने जवाब में उसको उतना ही रखा सही हो गया। इरफान साहब हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर सहाफ़ी माह रमज़ान का महीना है, हमारा मुआशरा क्या पैगाम देंगे? रमज़ान का महीना है जिस
हद तक हो सके हम कोशिश करें कि मुनाफाखोरी ना करें, और जिस हद तक हो सके हम कोशिश करें कि एक दूसरे के काम आए, और जो हमें दीन इस्लाम ने बताया उस पर अमल करें, और नादारों मुस्तहिकीन की मदद करें दिल खोल कर, तो अल्लाह ताला राज़िक़ है, सबके रिज़्क़ के दरवाजे अल्लाह ने खोलने। बेशक ये इस चीज़ पर अगर हम फोकस रखेंगे तो हर चीज़ हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। ये शेरबंदी साहब हम 2 अशार का कलाम लेंगे। टाइम कम है तो एक अशार इंशाल्लाह हम आपको अच्छा, वो कलाम है ख़त्म रसूल मक्की मदनी, अगर वो कलाम सुना दें तो। एक अशार उस कलाम का आप सुना दीजिए। खत्म रसूल खत्म रसूल मक्के मदनी खत्म रसूल मक्के मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं खत्म तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरे पर पहुँचे हो। निशान नबी है सब लेकिन निशान नबी है सब लेकिन मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं, खत्म रसूल है खत्म रसूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या ही खूबसूरत अंदाज, आवाज़ और सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे नशरियात का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह कल एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात होगी, और उम्मीद है कि कल हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कल के जो मेहमान होंगे उनसे गुफ्तगू होगी, दीनी सवालात होंगे। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब इरफान अराई साहब आपका, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। जनाब अल्लामा असलाम साहब आपका, आपने वक्त निकाला। सनाक हज़रात आपका, आप लोग तशरीफ लाए। जनाब मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब आपका, आप तशरीफ लाए और माशाल्लाह आज तैयार होकर आए, इस पर भी आपका शुक्रिया। और इसी के साथ जो है वो हम लेंगे इख्तिताम। जनाब अल्लामा असलाम साहब दुआ फरमाएंगे। मुलाकात होगी आपसे कल। देखते रहिए करम है रमज़ान। अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या रब्बल आलमीन, मौला करीम इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा। जो गलती कोताही क़स्दन साहबन अमदन हुई उसे मुआफ़ फरमा। जिन अहबाब में ताउन किया मौला उनके ताउन को कबूल फरमा। उनके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता फरमा। आदिल सिद्दीकी भाई के वालिद इमाद सिद्दीकी और भाई अज़फ़र सिद्दीकी की मग़फ़िरत फरमा। मोहम्मद रफ़ीक सुरैथिया की मग़फ़िरत फरमा। जावेद भाबा, रफ़ीक़ुज़्ज़मा और जावेद इकबाल भाई की वालदा की मग़फ़िरत फरमा। उज़ैर भाई के वालिद की मग़फ़िरत फरमा। ज़ुहैब भाई के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। आबिद मियाँ देहलवी की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन, जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं मौला, इनके जितने अज़ीज़ और अक़रबा मुसलमान दुनिया से चले गए, सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सबके दरजात को बुलंद फरमा। सबको कब्र से हशर तक की तमाम मंजिल और मरहलों में कामयाब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है रमज़ान।